পয়সা অ্যাকচুয়াল প্রবলেম নয়। पैसा जो है वो समस्या नहीं है। যদি আপনি ঈশ্বরকে বুঝে যান, ঈশ্বর পয়সা আপনার রাস্তায় যেতে যেতে যা দরকার সেই অর্থকে তিনি যোগান দেবেন। अगर आप परमेश्वर को समझ जाए तो उस रास्ते पे जब आप चल रहे तो परमेश्वर आपको हर एक बातों को दे देगा। যদি আপনি ঈশ্বরের অনুযায়ী চলছেন তো প্রোভাইডার ঈশ্বর হবে আপনার জীবনে। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे तो देने वाला परमेश्वर आपके जीवन में এই होगा। যাত্রা যদি আপনার ঘরের দরকার হয় ঈশ্বর আপনাকে দেবে। इस यात्रा में अगर आपको परमेश्वर अपने घर पे जरूरत होगी तो परमेश्वर आपको देगा। এই রাস্তায় যেতে যখন আপনার অর্থের দরকার হবে ঈশ্বর অর্থ দেবে। और इस यात्रा में अगर आपको पैसे की जरूरत होगी तो परमेश्वर आपको देगा। এই যাত্রায় যদি আপনার চাকরির দরকার হয় ঈশ্বর আপনাকে দেবে। इस यात्रा में अगर आपको नौकरी की जरूरत होगी तो परमेश्वर आपको देगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি এক সমৃদ্ধিশালী জীবনকে ব্যাপিত করবেন যদি আপনি ঈশ্বরের রাস্তায় চলেন। अगर आप परमेश्वर के रास्ता पे चलेंगे तो आप एक समृद्धिशाली जीवन को आप बिताएंगे। हालेलुया। হালেলুয়া। একটু হাসির সাথে বলতে পারেন হালেলুয়া। ওকে, প্রেজ দ্য লর্ড। ওকে, সো আজ আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা বিশ্বাসের ব্যাপারে আমরা দেখছি। आज हम लोग परमेश्वर का वचन से विश्वास के विषय में देख रहे আজ हैं। না মানে আমরা অনেক মাস, একটা মাস পুরো আমরা আলাদা আলাদা সপ্তাহে আমরা বিশ্বাসের ব্যাপারে আমরা দেখছিলাম। हम लोग आज नहीं बल्कि महीने से एक महीने से पहले से ही हम लोग देख रहे हैं विश्वास के विषय में। তো আজ আরেকটা বিশ্বাসের ব্যাপারে আপনাকে শিখিয়ে আজ আমরা এখানে বিশ্বাসের যে সিরিজটা আমরা এখানে শেষ করব। आज विश्वास के विषय में और एक बात को मैं सिखाकर आज इस सीरीज को मैं खत्म करूंगा। তারপরে আবার কোন একটা মাসে আমরা হয়তো পরবর্তীকালে আমরা বিশ্বাস হয়তো না নিশ্চয়ই বিশ্বাস নিয়ে আমরা আবার শিখবো, আরও বেশি গভীরে যাব আমরা। इसके बाद हो सकता है कि और भी बाद में हम लोग और भी विश्वास के विषय में सीख पाएंगे। তো আজ আমরা বিশ্বাস দেখব যে প্রসপেরিটিতে বিশ্বাসের ভূমিকা কি, সমৃদ্ধিতে বিশ্বাসের ভূমিকা কি। आज हम लोग देखेंगे समृद्धि में विश्वास की भूमिका क्या है। কারা কারা সমৃদ্ধিকে নিজের জীবনে দেখতে চান? कौन कौन समृद्धि को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? হাত না ওঠানো আগেই হাত উঠিয়ে দিলেন। মানে ডেসপারেট আছেন আপনাদের জীবনে সমৃদ্ধি দরকার আছে। হালেলুয়া। हालेलुया। মনে রাখবেন সব কিছু ঈশ্বরের বাক্যে আছে। याद रखिएगा सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। আপনার জীবনে যা কিছু দরকার সব কিছু ঈশ্বরের বাক্যে আছে। आपके जीवन में जो कुछ की भी जरूरत है वो सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। তো বাক্যে কিছু রান্না করে আপনাকে দেবে না, আপনাকে কি করবে? মাল মশলা দিয়ে দেবে। आपको भोजन बनाकर नहीं दिया जाएगा बल्कि उसका मसाला वगैरह आपको दिया जाएगा। आपको भोजन को बनाना पड़ेगा। आपको आपका अपना কি করে খাবারটা কি করতে হবে? বানাতে হবে। হালেলুয়া। তোমরা ঈশ্বর যখন কোনো কিছু দেবে আপনাকে বলে ফল দেবে না, আপনাকে বীজ দেবে। একে অপরকে বলো বীজ দেবে। परमेश्वर आपको बीज देगा। एक दूसरे को बोलो बीज देगा, फल नहीं देगा कभी भी। प्रॉब्लम यहाँ पे है ज्यादातर विश्वासी फल मांग रहे हैं, फल परमेश्वर नहीं देगा, बीज देगा जिसको ऊपर आपको मेहनत करना है। सॉरी, फिर से मेरा हिंदी आ रहा है। যার উপর আপনাকে কি করতে হবে? খাটতে হবে, বপন করতে হবে। আর একটা সময় যখন ফেথফুলি বিশ্বস্ততার সাথে যখন আপনি বপন করবেন এক সময় আপনি ফলকে কাটবেন। आप जब उस बीज को विश्वास के साथ जब उसको आप बोएंगे तो एक समय में आप उसका फल को देख पाएंगे। বিশ্বাসকে যদি বীজকে যদি অবিশ্বাসের সাথে বপন করেন ফল কোনোদিনও দেখবেন না। अगर बीज को आप अविश्वास के साथ अगर आप उसको बोएंगे तो आप उसका फल कभी भी नहीं देख মানে पाएंगे। ঈশ্বরের রাজ্যে বিশ্বাস সবকিছু, যদি বিশ্বাস না থাকে আপনি সবকিছু করে নিন, কিন্তু বিশ্বাস যদি না থাকে কোনো ফল দেখতে পাবেন না। परमेश्वर के राज्य में विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप उस विश्वास के साथ अगर कुछ नहीं करिएगा तो आप कुछ भी नहीं देख पाइएगा। হালেলুয়া। हालेलुया। जैसे आप যদি আপনি দোকানে যান, যদি আপনার কাছে টাকা না থাকে যতই ভালো করে দাদা একটু দিয়ে দিন, দাদা বলে দাদা আজ না, অনেক দিন ধার হয়ে গেছে। ঠিক আছে, যতক্ষণ না টাকা না দেবেন, যতই আপনি ভালো লোক হয়ে যান, কেউ আপনাকে জিনিস দেবে না। তেমনি ঈশ্বরের রাজ্যে যতক্ষণ না আপনার জীবনে বিশ্বাস নেই তো আপনি যা কিছু করে নিন, আপনি 40 দিন ফাস্টিং করে নিন,
আপনি 40টা চার্চে চলে যান, 40টা পাস্টার কাছে প্রার্থনা করিয়ে নিন, কিন্তু যদি বিশ্বাস আপনার জীবনে না থাকে তাহলে আপনি ফলকে দেখতে পাবেন না। अगर आप दुकान में जाइएगा और बिना पैसे के जाइएगा, वहाँ पर कुछ भी आप मांगिएगा तो आपको नहीं देगा। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी अगर आप बीज के साथ, अगर उस विश्वास के साथ अगर उस बीज को नहीं बोइएगा तो आप भी कुछ भी फल नहीं देख पाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। অনেকে ভাবে যদি পাস্টারের কাছে প্রার্থনা করে দিয়ে চমৎকার চলে আসবে। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर पास्टर के पास अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होगा। নো ডাউট আসে, ইম্পার্টেশন হয়, কিন্তু সেটা নিয়ে আপনি সারা জীবন কাউরির কাঁধে উস্কে রেখে আপনি সারা জীবন চলতে পারবেন না। किसी के अपना क्रूस को किसी और के हाथ में सौंप के और आप सोचोगे वो आपका क्रूस को लेके चलेगा, ये नहीं हो सकता है। हालेलुया। আপনার জীবনের পাহাড়কে আপনাকেই সরাতে হবে। आपके जीवन के जो पर्वत है उसे आपको ही हटाना होगा। আপনার জীবনের অবিশ্বাসের সাথে আপনাকেই লড়তে হবে। आपके जीवन के अविश्वास के साथ आपको ही लड़ना होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আমি এত পাঁচটা আপনাকে দেখাতে পারি কিভাবে আপনি আমার বাক্য থেকে আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি এইটা রাস্তা, চলতে আপনাকে হবে। मैं एक पास्टर होने के नाते मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको चलना खुद होगा। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ওকে, একটা মাথায় আরেকটা জিনিস আসছে আমি জাস্ট রাখতে চাই। যখন আমি স্টার্টিং প্রভুতে এসেছিলাম, जब मैं शुरू में प्रभु में आया था, আমার একটা কমপ্লেন বলবো না, কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা সবসময় প্রভুর সাথে ছিল। मेरे जीवन में एक पूछने का एक उम्मीद हमेशा मेरे जीवन में थी। नहीं, एक क्वेश्चन मेरा परमेश्वर के पास हमेशा रहता था। ठीक है, क्या क्वेश्चन? স্টার্টিং মে ওকে, যখন আমি স্টার্টিং এ ছিলাম আমি জানতাম যে এইখানে এক পাস্টার আসছে, অনেক চমৎকার হচ্ছে, ঠিক আছে, পাস্টার এক্স বা পাস্টার ওয়াই, ঠিক আছে, মাইখানে এসছে, যাও ওখানে গিয়ে অনেক চমৎকার হচ্ছে। আমি পুরো পরিবারকে সেখানে নিয়ে যেতাম। मैं एक पास्टर के विषय में सुना था कि माइथन में ये पास्टर आ रहे हैं, तो मैं अपने परिवार के साथ उस पास्टर के पास गया था। টাকা খরচা করে নিয়ে যেতাম যে কোনো চমৎকার হোক আর আমার পুরো পরিবার প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করুক। खर्च करके अपने परिवार को साथ लेकर मैं जाता था ताकि कोई भी चमत्कार हो, मेरा पूरा परिवार ही आता। আমি এক্সপেক্ট আমার মায়ের এই জ্বরটা যেন, বা এই জ্বর বলবো না, আমার মায়ের একটা রোগ ছিল, সেই রোগটা যেন ঠিক হয়ে যাক আর তার দ্বারা যেন মা প্রভু যিশুকে গ্রহণ করে। मैं यह विश्वास के साथ जाता था कि मेरे माँ के जीवन में जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, ताकि मेरी माँ भी विश्वास कर पाए। অনেক জায়গায় গেছি কিন্তু কোনো জায়গায় কার্য আমি সেরকম দেখতে পাইনি। बहुत जगह मैं गया, लेकिन वो कहीं भी ऐसा कार्य को मैंने नहीं देखा। বাকি লোকের জীবনে দেখতে পেয়েছি অনেকজন যে এই চমৎকার হচ্ছে, ওই চমৎকার অনেক সাক্ষী দিচ্ছে, আলাদা সাক্ষী দিচ্ছে, আমি আমার জীবনে কোনো সাক্ষী পাচ্ছিলাম না। बाकियों के जीवन में मैं देख पाता था कि ये ऐसा गवाही दे रहा है, वैसा गवाही दे रहा है, लेकिन मैं अपने जीवन में उस गवाही को नहीं देख पाता था। আর আমি কত কোশ্চেন করতাম যে কেন কেন আমার জীবনে এরকম জিনিস হচ্ছে, কোথায় আমার ভুল হচ্ছে। मैं ऐसे ही अपने आप से क्वेश्चन करता था कि कहाँ मेरा गलती हो रहा है। হয়তো কারণ একটা ছিল যে আমার বিশ্বাস যেন, তারপর একটা সময় আসে যখন ঈশ্বরের বাক্যকে পড়তে শুরু করি, उसके बाद एक समय आया जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, আর মাকেও ধীরে ধীরে আমার পরিবারকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের ব্যাপারে বলতে শুরু করি, और अपने परिवार को, अपनी माँ को परमेश्वर के बारे में बताना शुरू किया। আর তিনি যখন নিজে আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে যখন তার জীবনে বিশ্বাস আসতে শুরু করে, और जब उन्होंने खुद भी परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो उनके जीवन में विश्वास आना शुरू हुआ, আর তার জীবনে আস্তে আস্তে কার্য হতে শুরু করে। হালেলুয়া। और उनके भी जीवन में धीरे धीरे कार्य होना शुरू हो गया। আর তারপরে আস্তে আস্তে সময় সে পুরো পরিবার প্রভু যিশুকে জানে আর তাকে গ্রহণ করে। और उसके बाद धीरे धीरे पूरा परिवार मेरा परमेश्वर को जानने लगा, और आज यहाँ पे उपस्थित। আমি এটা বলছি না যে চমৎকার হয় না, চমৎকার হয়। আপনি এই দিক ওই দিক যাবেন, পাস্টার ওখানে যখন পাস্টারদের কলিং আছে, তাদের জন্য গিফট আছে, আর কার্য হয়। ठीक है, कार्य होता है, चमत्कार होता है। पर उस समय में ওই সময় বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন হয়তো আমি ধন্যবাদ দিই যে থ্যাঙ্ক গড সেইখানে সেই সময় আমার জীবনে আমি যে এক্সপেকটেশনের সাথে গেছিলাম সেইখানে সেই রকম হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর একটা বড় যোজনা আমার জীবনে ছিল। ठीक है, उस समय में परमेश्वर का चमत्कार मेरे जीवन में नहीं हो पाया, बट मुझे समझ पाया बाद में कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में था। अगर मुझे फट से जाके बहुत आसानी से एक चमत्कार मिल जाता ना, तो मैं हमेशा शायद इंसान के पीछे ही भागता। बट जब कुछ हुआ नहीं और मैं वचन को ढूंढने लगा, वचन को सीखने लगा, मेरे जीवन में भरपूरी आते আমার জীবনে ভরতে শুরু করে দিল। কারণ অনেক সময় আমরা কল করতাম পাস্টার, যখন বাচ্চাদের পাস্টার এই ব্যাপার,
पास्टर पहले पहले तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, बट बाद में ऑब्वियसली लोग बढ़ते हैं तो पास्टर अवेलेबल नहीं हो पाता है। तब क्या है, अगर आपके अंदर में वचन है तो आप घोषणा करो, चमत्कार आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर सबके लिए समान है। ঈশ্বর সবারই জন্য এক, ঠিক है। ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করে না। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি আপনি বাক্যকে ঘোষণা করেন আপনার জীবনে কার্য হবেই হবে 100%। अगर आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करेंगे तो आपके जीवन में भी कार्य होगा ही তো होगा। কার উপর নির্ভর করা বেটার? तो কোনো किसके মানুষের উপর যে সব জায়গায় একই সময়ে উপস্থিত থাকতে পারবে না, तो किसके ऊपर निर्भर करना ज़्यादा अच्छा है, कि इस मनुष्य के ऊपर कि जो हर जगह उपस्थित आपके साथ नहीं हो पाएगा। हर समय हर जगह में आपके साथ नहीं रह सकता है, बट किसको ऊपर? अगर यीशु पे डिपेंड को हमेशा रहना, वो हर जगह हर समय आपके साथ रहता है। हालेलुया। कैसे रहता है? की करे থাকে? তার বাক্যের দ্বারা আপনার কাছে থাকে। ঈশ্বর বাক্যে আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সাথে ছিল, আর বাক্য ঈশ্বর ছিল। যোহন 1:1-2। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही। तो वचन को जानना मतलब किसको जानना? परमेश्वर को जानना। और वचन को अगर नहीं जानते हो तो किसको नहीं जानते हो? परमेश्वर को। हालेलुया। যদি বাক্য আপনি জানেন তো আপনি ঈশ্বরকে জানবেন, কিন্তু বাক্য যদি আপনি না জানেন আপনি ঈশ্বরকে জানতে পারবেন না, কারণ বাক্য ঈশ্বর। अगर वचन को आप जानिएगा तभी आप परमेश्वर को जान पाइएगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और कोई भी इंसान को जितना आप जानोगे आपका विश्वास बढ़ते जाएगा उस इंसान के ऊपर। আর কোনো মানুষের উপরে যদি তুমি জানতে চাইবে তো তোমার বিশ্বাসও সেই মানুষের উপরে বাড়তে শুরু করবে। আমরা কোনোদিন অজানা ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করি না, हम लोग कभी अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करते। কিন্তু যাকে আমরা জানতে শুরু করি, তার স্বভাবকে জানতে, তার সামর্থ্যকে জানতে শুরু করি, তখন আমরা আস্তে আস্তে তার উপর বিশ্বাস করতে শুরু করি। जब हम किसी मनुष्य को जानना शुरू करते हैं, उसके स्वभाव, उसको सामर्थ्य को जानना शुरू करते हैं, तब हम उस पर विश्वास करना शुरू তো करते हैं। বিশ্বাস কোনো একদিনের ঘটনা না, जो आज আমি প্রভু যিশু জানলাম বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস অনগোয়িং, ঠিক আছে, विश्वास कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यू। हाँ, विश्वास विश्वास कोई एक दिन का घटना नहीं हो, मैं यीशु को जान लिया, मैं विश्वास कर लिया। विश्वास एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जितना वचन को जानोगे उतना यीशु के बारे में आप और ज़्यादा जानते जाओगे। जितना जानोगे उतना आपका विश्वास क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और जितना आपका विश्वास बढ़ते जाएगा, याद रखना, उतना आपका जीवन सामर्थ्य होते जाएगा। जितना आपका विश्वास बढ़ते जाएगा, याद रखना, उतना चमत्कार आप अपने जीवन में देख पाओगे। जितना विश्वास आपका बढ़ता जाएगा, याद रखना, उतना आप सिचुएशन को देख के सिचुएशन के ऊपर हंसोगे, बोले अरे सिचुएशन तू नहीं जानता मैं किसके साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। তা আমি আমার মেন কার্য এখানে আপনাকে ঈশ্বরের বাক্যকে শেখানো, मेरा महत्वपूर्ण कार्य यही है कि मैं आपके परमेश्वर के वचन को आपको सिखा पाऊँ, যাতে আপনি আমার উপর না ঈশ্বরের বাক্যের উপর যেন বিশ্বাস করতে শেখেন। ताकि आप मेरे ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना शुरू যখন कर सकें। বাক্যকে শিখে যাবেন আপনার প্রার্থনার জন্য আপনার কোনো মানুষের দরকার পড়বে না। जब आप वचन को सीख जाएंगे तो प्रार्थना के लिए आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं होगी। হালেলুয়া। हालेलुया। ওকে, সো আজ আমরা বিশ্বাসে আপনার সমৃদ্ধিতে আপনি কি করে বাড়তে পারেন আমরা সেটা দেখব। आज हम लोग विश्वास के द्वारा समृद्धि में किस रीति से बढ़ पाएंगे उसके विषय में हम देखेंगे। ওকে, সমৃদ্ধি যদি প্রসপেরিটি যদি আমরা কথা বলি, সমৃদ্ধি বলতেই ঠিক আছে অনেক মানুষ খ্রিস্টান সোসাइटी এটাকে নেগেটিভ ওয়ার্ড মনে করে। अगर हम समृद्धि के विषय में बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि क्रिश्चियन सोसाइटी में उसको एक गलत रीति से देखा जाता है। সমৃদ্ধি, আরে না না না, ঈশ্বর টাকা জানিস, টাকার বিরুদ্ধে, ঈশ্বর টাকাকে ভালোবাসে না। पैसा जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। परमेश्वर के विषय में पैसे के विषय में परमेश्वर कुछ नहीं बोलता। আরে আপনি যত ধার্মিক হবেন আপনি তত টাকা আপনার জীবন থেকে যাবে, আপনি তত নম্র হবেন। आप जितना नम्र होंगे, जितना धार्मिक होंगे, आपके जीवन से पैसा जाएगा। আমি কিছুদিন আগে একটা অনলাইনে একটা কি বলবো রিলস ভাইরাল হয়েছিল, ঈশ্বরের টাকার ব্যাপারে, অর্থের ব্যাপারে আমি শেখাচ্ছিলাম। कुछ दिन पहले एक रील्स वायरल हुआ था जिसमें परमेश्वर के इस समृद्धि के विषय में बता रहा था। আর একজন ব্যক্তি সেখানে মেসেজ করে, দাদা আপনার প্রচার আমি রোজ শুনি। और वहाँ पर एक मनुष्य मुझे एक मैसेज करता है कि दादा भैया मैं आपका प्रचार रोज सुनता हूँ। আমি খুব ভালো লাগে আপনার প্রচার, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपका प्रचार। কিন্তু দয়া করে সমৃদ্ধি ব্যাপারে প্রচার করবেন না। पर दया करके समृद्धि के विषय में मत बात कीजिए। টাকা এলে মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে যায়।
क्योंकि पैसे आने से मनुष्य जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं। টাকা বেশি থাকলে মানুষ আর কিসের জন্য ঈশ্বরের কাছে আসবে? अगर पैसा ज्यादा होगा तो परमेश्वर के पास मनुष्य किस रीति से जाएगा? হালেলুয়া। কারা কারা এটা মনে করেন যে টাকা বেশি থাকলে মানুষ ঈশ্বর মানুষের কাছে কিসের জন্য যাবে? যদি আপনার কাছে প্রবলেমই না থাকে, আজ আপনার কাছে টাকার দরকার, আপনার কাছে বড় অপারেশনের দরকার, আপনার কাছে নেই, আপনি ঈশ্বরের কাছে আসছেন, বলছেন ঈশ্বর আমার জীবনে তুমি কার্য করো। যদি আপনার কাছে টাকা থাকে, বলে আমার দরকার নেই, আমি টাকা দিয়ে অপারেশন করিয়ে নেবো, রাইট না? অনেক মানুষ এটাও বলে, बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं কে টাকা থাকলে ঈশ্বর থেকে আমি ছেড়ে যাবো না, কিন্তু ঈশ্বর থেকে আমরা দূরে চলে যাব। अब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसा रहने पे हम परमेश्वर को छोड़ नहीं देंगे, बल्कि परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। তো অনন্ত জীবন তো থাকবে, ঈশ্বরকে ছাড়িনি, কিন্তু ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গেছি। तो अनंत जीवन तो होगा, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। बहुत कोई মানুষ বলে সমস্যা জীবনে ভালো, সমস্যা ঈশ্বরের কাছে তোমাকে রাখে। और बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि समस्या जीवन में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है। যারা এই কথাটা ভাবেন মনে রাখবেন, যারা এমন ব্যক্তিকে দেখবেন যারা 2-3 বছর ধরে কন্টিনিউয়াসলি সমস্যায় যাচ্ছে, তারা ঈশ্বরের কাছে নেই, তারা ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। और जो ऐसा सोचते हैं वो देख रहे हैं कि वो मनुष्य जो है परमेश्वर के पास समस्याओं में ही डूबा है, और परमेश्वर से वो बहुत दूर हो चुका है। তো মনে রাখবেন রোগ, ঠিক আছে, সমস্যা, কঠিন অবস্থা এটা ঈশ্বরের কাছ থেকে নয়। तो याद रखिएगा, रोग, समस्या और कठिन अवस्था परमेश्वर की ओर से नहीं है। মানুষ পাপ করেছিল, আর তাই জন্য যে জগৎ ঈশ্বর বানিয়েছিল, না কোনো দুঃখ ছিল না কষ্ট ছিল, কিন্তু মানুষ তার পাপের জন্য এরকম জগৎকে বানিয়েছে। परमेश्वर ने ऐसा जगत बनाया था जहाँ कोई भी रोग, कोई भी कठिन परिश्रम नहीं था, लेकिन मनुष्य के पाप के द्वारा ये सारे विषय हम लोग के जीवन में आती हैं। হালেলুয়া। তোমার রাখবেন সমস্যা কোনোদিন ঈশ্বরের সামনে নিয়ে আসবে না, সমস্যা সবসময় আপনাকে পিতার কাছ থেকে দূরে করতে পারে। तो याद रखिएगा, समस्या कभी भी परमेश्वर के सामने हमें नहीं लेकर जाता, बल्कि पिता से हमें दूर कर देता है। আমি অনেক বিষয়ে যে আরে ধুর পাস্টার অনেক দিন ধরে আমি প্রার্থনা করছি, আমার জীবনে কিছু হয়নি, কিছু হবে না, তারা দূরে চলে যায়। আমি কোনো মানুষকে দেখিনি তারা সামনে আসতে। मैंने ऐसा ही देखा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे पास्टर मैं अरे पास्टर बहुत प्रार्थना कर लिया, बहुत कुछ कर लिया और अच्छा नहीं लग रहा, नहीं परमेश्वर से कुछ नहीं होता है, बस हम अपने जीवन में। কিন্তু যদি মনে রাখবেন, যদি আপনার ভালোবাসার কারণ যদি সমস্যা আপনাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসছে, তার মানে একটা জিনিস হচ্ছে আপনি ঈশ্বরের ছবি আপনার কাছে ক্লিয়ার নেই। अगर समस्या, परिस्थिति, गंदा परिस्थिति, गलत परिस्थिति आपको परमेश्वर के पास लेके आ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का छवि आपके जीवन में क्लियर नहीं है। क्योंकि जब क्या होता है, समस्या होता है, नहीं तो क्या मांगेंगे? मांगने के लिए हमेशा अगर आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, अगर चावार জন্য আপনি খালি পিতার কাছে আসছেন, তাহলে एक्चुअली अपनी पितार ভালোবাসাকে জানেন না, तब एक्चुअली आप परमेश्वर को, प्यार को क्या करते हो, नहीं समझते हो। अगर आयान, যদি আয়ান আমার কাছে সব সময় কিছু পাওয়ার জন্য আসে, अगर आयन मेरे सामने हर समय कुछ मांगने के लिए आए, যখন তার দরকার পড়ছে সে পিতার কাছে দরকার শেষ, সে চলে যাচ্ছে, তার মানে একটা জিনিস, আয়ানের সাথে আমার সম্পর্ক সঠিক নেই। अगर आयन से मांगने के लिए मेरे पास आ रहा है और किसी बातों के लिए नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरा और आयन का जो रिश्ता है वो सटीक नहीं है। অনেক সময় আমার সাথে খেলতে আসে, আমার সাথে বসতে আসে, আমাকে জড়িয়ে ধরে, কোনো দরকার নেই সেখানে। কেন? সম্পর্ক, পিতা পুত্রের সম্পর্ক। बहुत से समय खेलने के लिए आता है, मुझे गले लगाता है, मेरे साथ बातें करता है, तो वो क्या है? पिता और बेटे का जो है संपर्क है। তো পরমেশ্বর, ঠিক আছে, তো ঈশ্বর মনে রাখবেন আপনার পিতা, বলুন একে অপরকে পিতা। परमेश्वर जो है वो आपका पिता है, আর সে চায় আপনি যেন তার কাছে আনন্দের সাথে তার কাছে আসুন। और वो चाहते हैं कि आप उनके पास आनंद के साथ जाएं। সে চায় না যে সবসময় উনি কান্নার মুখের সাথে তার কাছে আসবেন, তারও যখন আপনি কাঁদে মনে রাখবেন তারও হৃদয় ভাঙে। वो ये नहीं चाहते कि आप हर समय रोने की अवस्था में ही परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि आप अगर रोते हैं तो परमेश्वर भी रोते हैं। তাই মানে এটা না যে আপনি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবেন, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে আপনাকে অধিকার দেওয়া আছে সে সমস্যাকে আপনি প্রভু যিশুর নামে হারাবেন। হালেলুয়া। इसका मतलब ये नहीं कि समस्या से आप दूर हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में ये अधिकार दे दिया है कि हम उस समस्या को हटाएंगे अपने जीवन से। तो समस्या आपके जीवन में आएगा, बट समस्या परिस्थिति आपका जीवन का कारण नहीं है जिसके लिए आप परमेश्वर के पास जाते हो। ঠিক আছে, ভুল এটা ভাববে না যে ও তার মানে পাঁচটা বলছে কোনোদিনও বাজে পরিস্থিতি আসবে না। এই জগতে পরিস্থিতি বাজে আসবে, কিন্তু পরিস্থিতি বাজে আসার জন্য এটা যেন কারণ না হয় যে আপনার ঈশ্বরের কাছে আপনি যাচ্ছেন। আপনি পিতাকে ভালোবাসেন, তাই জন্য আপনি পিতার কাছে
যাচ্ছেন। हालेलुया। आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर के पास जाते हैं। तो कभी भी ये मत बोला प्रभु मेरे जीवन में और तकलीफ दे ताकि मैं तेरे पास रहूं। तो ऐसा कभी मत बोलिएगा कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में और भी तकलीफें दीजिए ताकि मैं आपके पास रहूं। এটা ধর্ম শেখায় কিন্তু সম্পর্ক শেখায় যে ঈশ্বর আমি তোমার প্রেমে আমি পরিপূর্ণ হয়ে আমি তোমার কাছে আসি, আমি তোমার সাথে আমার কথা বলতে ভাল লাগে, তোমার সাথে আমার সময়কে ব্যতীত করতে ভাল লাগে, আর প্রভু তোমাকে আমি ভালোবাসি তাই জন্য আমি তোমার কাছে আসি। परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे तेरे साथ रहना अच्छा लगता है, मैं तेरे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तेरे पास आता हूँ। কখনো কখনো আমার যখন হৃদয় ভাঙে আমি তোমার কাছে দৌড়ে আসি, কখনো যখন আমার জীবনে আনন্দ হয় আমি প্রথমে তোমার কাছে দৌড়ে আসি, সেটা হচ্ছে সম্পর্ক। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं परमेश्वर के पास दौड़ कर जाऊं, परमेश्वर के साथ आनंद के साथ दौड़ कर जाऊं, यही होता है कभी कभी आप संपर्क। टूटोगे किसके पास जाओगे? क्या होता है कभी कभी हम लोग टूटते हैं तो हम लोग जिस एक इंसान चाहते हैं जिसके साथ अपना दुख को याद रखना, पिता सबसे पवित्र आत्मा सबसे अच्छा दोस्त है आपका जिसके पास आप जा सकते हो। और जब खुश होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने को जो सबसे करीबी इंसान है सबसे पहले हम उसके साथ शेयर करते हैं। तो याद रखना पवित्र आत्मा भी वही इंसान है, वही परमेश्वर है जो आपका सबसे ज़्यादा करीबी है। और जब आपका जीवन में आनंद भी होता है किसके पास जाना है सबसे पहले? पिता के पास। हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत सारे लोग इस समृद्धि को गलत तरीके से अनेक जन আছে যারা সমৃদ্ধিকে ভুল ব্যাপারে ভাবে। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि समृद्धि को गलत रीति से लेते हैं। যখনই সমৃদ্ধির ব্যাপার হয় আরে পাঁচটা জাগতিক ভ্রষ্ট প্রচারক। और जब भी समृद्धि के विषय में बातें करता हो तो लोग तो बोलते हैं कि अरे ये तो पाखंडी है, ये पैसे के विषय में बोल रहे हैं। হ্যাঁ খালি টাকা চাই তাই জন্য টাকার ব্যাপারে বলছে। ये सिर्फ पैसा चाहते हैं इसीलिए पैसे के विषय में बोलते हैं। সমৃদ্ধি খালি টাকা নয়, समृद्धि जो है वो सिर्फ पैसा ही नहीं है, সমৃদ্ধি টাকার চেয়ে অনেক উপরে। समृद्धि जो है वो पैसे से बहुत ऊंचा है। হ্যাঁ সমৃদ্ধি একটা পার্ট টাকা হতে পারে কিন্তু টাকা সমৃদ্ধি নয়। समृद्धि का एक भाग पैसा हो सकता है लेकिन वो पैसा ही समृद्धि नहीं है। হালেলুয়া। हालेलुया। তোমার আমি সমৃদ্ধি বলার আগে আমি বলতে চাই যতটা আপনি সমৃদ্ধিশালী হতে চান তার চেয়েও বেশি পিতা চায় যেন আপনি সমৃদ্ধশালী হন। जितना आप समृद्धिशाली होना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा पिता चाहता है कि आप समृद्धिशाली हो। হালেলুয়া। তো সমৃদ্ধির মানে কি? সমৃদ্ধি মানে ধনী হওয়া নয়। समृद्धि का अर्थ क्या है? उसका अर्थ धनी होना नहीं है। জগৎ ভাবে বা বিশ্বাস করে যার কাছে টাকা আছে সে তার কাছে সমৃদ্ধি আছে। जगत सोचता है कि जिसके पास पैसा है वही समृद्धिशाली है, যার কাছে অর্থ সে হচ্ছে ধনী। और जिसका पास पैसा है वही है धनी। আপনার কাছে অর্থ কোটি কোটি টাকা থাকার পর আপনি গরিব হতে পারেন। आपके पास पैसा होने के बाद भी चाहे वो करोड़ों ही क्यों ना आप गरीब हो सकते हैं। সো আপনার কাছে অনেক টাকা আছে ঠিক আছে কিন্তু আপনার কাছে শরীর নেই বা আপনার কাছে স্বাস্থ্য নেই সেই টাকাকে এনজয় করা মানে আপনি গরিব। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो इसका मतलब आप गरीब है। আপনার কাছে টাকা আছে কিন্তু আপনি যদি আপনার গরিব আপনার যদি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রতে দেখেন সেখানে আপনি গরিব আছেন। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन आप अगर स्वास्थ्य की तरफ अगर देखें तो आप गरीब हैं। আপনি অনেক কামাচ্ছেন কিন্তু আপনার বেশি কামানো চলে যাচ্ছে হসপিটালে। आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चल जा रहा है हॉस्पिटल में। আপনার কাছে অনেক টাকা আছে কিন্তু আপনার কাছে শান্তি নেই তো আপনি গরিব অ্যাকচুয়ালি। आपके पास अगर बहुत पैसा है फिर भी आपके पास अगर शांति नहीं है तो आप गरीब हैं। Money without a loving family, friends, health, joy and peace is a curse. যদি আপনার কাছে পয়সা আছে কিন্তু আপনার কাছে পরিবার নেই, যদি আপনার কাছে পয়সা আছে কিন্তু আপনার কাছে এরকম বন্ধু নেই যাদের সাথে আপনি আপনার সময়কে ব্যতীত করতে পারেন, আপনার কাছে পয়সা আছে কিন্তু আপনার কাছে সেরকম শরীর বা হেলথ নেই, স্বাস্থ্য নেই যে সে পয়সা এনজয় করতে পারেন, তার অর্থ হচ্ছে তাহলে আপনার কাছে পয়সা মানে হচ্ছে অভিশাপ আপনার জীবনে। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास फैमिली नहीं है, अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास दोस्त नहीं है, अगर आपके पास पैसा है अगर आपके पास पर उसके बाद भी आपके पास आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आनंद नहीं है तो पैसा क्या है आपके लिए? अभिशाप है। ऐसे এরকম অনেক মানুষ আছে যাদের কাছে অনেক অর্থ কিন্তু তারা জীবনে বাঁচতে চায় না। অর্থ সবকিছু দিতে পারে না আপনার জীবনে। पैसा जो है वो सब कुछ नहीं दे सकता है आपके जीवन তো में। সমৃদ্ধির মানে খালি অর্থ নয়। तो समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। জগৎ এরকম ছোট ভাবনা চিন্তা করে কিন্তু ঈশ্বর এরকম ছোট ভাবনা চিন্তায় সীমাবদ্ধ নয়। जगत जो है वो इतना छोटा चिंताओं को रखता है लेकिन जो परमेश्वर वो इन छोटी चिंताओं में बंधा हुआ नहीं है। पर কিন্তু তবে ধার্মিকের হাতে টাকা একটি শক্তিশালী
টুল বা হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াতে পারে। लेकिन धर्मी के हाथ में जो पैसा है वो एक हथियार के रूप में खड़ा हो सकता है। हथियार इन द सेंस नेगेटिव वर्ड में टूल, एक अच्छा टूल, एक अच्छा, ठीक है, हथियार इन द सेंस जो अच्छा कार्य के लिए इस्तेमाल हो, ঠিক আছে, ভালো জিনিসের জন্য। যদি একটা ধার্মিক আছে অর্থ থাকে, সেই ধার্মিক সেই ব্যক্তি কি করবে, ধার্মিক কাজের জন্য, ভালো কাজের জন্য সেই টাকাকে ইউজ করবে। एक धार्मिक क्या करेगा, उस पैसा को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। টাকা যদি আপনার না থাকে তো আপনি, টাকা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু টাকা সব কিছু নয়। पैसा जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। আনন্দের জন্য টাকার দরকার আছে কিন্তু টাকা আনন্দকে কিনে দিতে পারবে না। आनंद के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन उस पैसा से आनंद आप नहीं खरीद सकते। যে যে মানুষ আপনাকে বলে টাকা বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, টাকা 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 টাকার কথা বলো না, সে মানুষকে বলবেন যে যদি কোনো জায়গায় সে ঘুরতে যায় তার জন্য কি সে প্রভুর নামে ঘুরে যাবে, না তার জন্য টাকার দরকার। जो बोलते हैं कि नहीं पैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा के बारे में मत बोलिए, लेकिन अगर आप घूमने जाएंगे तो क्या आप परमेश्वर ही आपको लेकर चले जाएंगे? তার ছেলে মেয়ে যদি পড়াশোনা করানোর জন্য কি ফ্রিতে পড়িয়ে দেয়, তার জন্য কিসের দরকার? अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। जो তারা বলে টাকা ইম্পর্টেন্ট না, হিপোক্রেটস তারা, হিপোক্রেটস ইন দ্য সেন্স ভণ্ড और তারা। जो बोलता है कि पैसे की जरूरत नहीं है वो पाखंडी है। টাকা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু টাকা সব কিছু নয়। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। তো সমৃদ্ধির একটা পার্ট হচ্ছে অর্থ নিশ্চয়ই। तो समृद्धि का एक भाग है पैसा। সমৃদ্ধির একটা পার্ট অর্থ, কিন্তু অর্থ সমৃদ্ধি নয়। समृद्धि का एक भाग है पैसा, लेकिन पैसा ही समृद्धि नहीं है। তো যখন আপনি সমৃদ্ধির কথা ভাবছেন, অর্থ নিশ্চয় আপনার জীবনে, আপনার মাথায় অর্থ নিশ্চয়ই আসবে, সেটা ভুল নয়, কিন্তু সেটা অসম্পূর্ণ যদি আপনার কাছে খালি অর্থের ভাবনাই আসে। अगर आप समृद्धि के विषय में सोचते हैं तो आपके दिमाग में पैसा जरूर आएगा, लेकिन वो पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर सिर्फ पैसा आता है वो अधूरा है, ठीक है, वो पूरा नहीं है। तो সমৃদ্ধির মানে কি? तो समृद्धि का अर्थ क्या है? যদি আমরা দেখি বাইবেলের সমৃদ্ধি, যদি আমরা গ্রিক ওয়ার্ডকে দেখি, अगर हम लोग समृद्धि के अगर बाइबल में ग्रीक वर्ड को अगर हम देखें, ঠিক আছে, ইউডো লেখা আছে। ইউ মিনস ওয়েল ডান অর গুড, ঠিক আছে, হোডোস মানে ওয়ে অর পাথ। ইউডো যে দুটো শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে, একটা ইউ মানে হচ্ছে ওয়েল ডান অর গুড, ভালো কার্য বা উত্তম, ঠিক আছে, আর হোডোস আর একটা ওয়ার্ড যেটা মানে হচ্ছে ওয়ে অর পাথ, যেটা মানে হচ্ছে রাস্তা। यहाँ पर जो ग्रीक वर्ड है वो आता है यूडो से, जिसका अर्थ है, जो दो वर्ड से इस्तेमाल हो रहा है कि यू, जिसका अर्थ है वेल डन और गुड, जो अच्छा है और अच्छे से हो रहा है, और होडोस जो है उसका अर्थ है वे और पाथ या रास्ता। ওকে, अब आपको একটা জিনিস আপনাকে বোঝাতে চাই, খ্রিস্টানটি মনে হবেন একটা যাত্রা। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक यात्रा है। এটা না ও প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করে এবার প্রভু কবে আসবে, কবে স্বর্গ যাব, এটা নয়। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का याद करें कि प्रभु आप कब आइएगा और कब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করার পর আপনি এই জীবনে এক যাত্রায় যাবেন। ঈশ্বর আপনাকে এক অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে, একটা যাত্রা দিয়েছে যেটা আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। प्रभु यीशु को जानने के बाद परमेश्वर आपको एक यात्रा को देगा जिसे आपको इस जीवन में पूरा करना है। एक असाइनमेंट देगा, एक असाइनमेंट को देगा, ठीक है, जिसको आपको पूरा करने के लिए एक यात्रा में आपको, एक रोड में आपको जाना, एक वे में आपको जाना पड़ेगा। और যখন এই রাস্তাটা পূর্ণ করবেন, जब इस रास्ता को आप पूरा करेंगे, যখন ভালোভাবে যদি পূর্ণ করেন, একদিন আপনাকে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হবে। और जब आप अच्छे से उसे पूरा करेंगे तो आप परमेश्वर के सामने एक बार खड़े होंगे, আর ঈশ্বর তো বলে ইয়ো ওয়েল ডান, और परमेश्वर तब बोलेंगे बहुत अच्छा, ভেরি গুড। बहुत ही अच्छा। তো সমৃদ্ধি কি? সমৃদ্ধি যখন ঈশ্বর আপনাকে বেছেছে আর তার কার্যের জন্য যখন আপনি যাত্রায় যাচ্ছেন, তার সেইটা করার জন্য যা যা জিনিসের দরকার, সব জিনিসের সরবরাহ কে করবে? ঈশ্বর করবে। তার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না, ঈশ্বর করবে, যাতে আপনি আপনার যাত্রাকে সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতে পারেন। আর করার পর ঈশ্বর যেন বলতে পারে ওয়েল ডান। समृद्धि वह है जब परमेश्वर आपको चुनते हैं, तब जब उस यात्रा में आप जाते हैं, आपको जो कुछ की भी जरूरत है तब परमेश्वर आपको देते हैं, तो वो जब आप पूरा कर लेते हैं तब परमेश्वर आपको बोलते हैं बहुत ही अच्छा। তো মনে রাখবেন, অনেক সময় মানুষ বলে আরে পাস্টার আমার ঈশ্বর আমাকে এটা দিয়েছে, কিন্তু এটা করার জন্য অনেক টাকা খরচা হবে, আমি কি করে করব? तो बहुत से लोग बोलते हैं कि पास्टर परमेश्वर ने मुझे ये जगह को दिया है, लेकिन यहाँ पर करने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा की जरूरत है, तो मैं कैसे करूँगा? পয়সা অ্যাকচুয়াল প্রবলেম নয়। पैसा जो है वो समस्या नहीं है। যদি আপনি ঈশ্বরকে বুঝে যান,
ঈশ্বর পয়সা আপনার রাস্তায় যেতে যেতে যা দরকার সেই অর্থকে তিনি যোগান দেবেন। अगर आप परमेश्वर को समझ जाए तो उस रास्ते पे जब आप चल रहे तो परमेश्वर आपको हर एक बातों को दे देगा। যদি আপনি ঈশ্বরের অনুযায়ী চলছেন তো প্রোভাইডার ঈশ্বর হবে আপনার জীবনে। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो देने वाला परमेश्वर आपके जीवन में এই होगा। যাত্রা যদি আপনার ঘরের দরকার হয় ঈশ্বর আপনাকে দেবে। इस यात्रा में अगर आपको परमेश्वर अपने घर पे जरूरत होगी तो परमेश्वर आपको देगा। এই রাস্তায় যেতে যখন আপনার অর্থের দরকার হবে ঈশ্বর অর্থ দেবে। और इस यात्रा में अगर आपको पैसे की जरूरत होगी तो परमेश्वर आपको देगा। এই যাত্রায় যদি আপনার চাকরির দরকার হয় ঈশ্বর আপনাকে দেবে। इस यात्रा में अगर आपको नौकरी की जरूरत होगी तो परमेश्वर आपको देगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি এক সমৃদ্ধিশালী জীবনকে ব্যাপিত করবেন যদি আপনি ঈশ্বরের রাস্তায় চলেন। अगर आप परमेश्वर के रास्ता पे चलेंगे तो आप एक समृद्धिशाली जीवन को आप बिताएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। তো সমৃদ্ধি এটা না যে আপনার কাছে কত সম্পদ আছে। समृद्धि ये नहीं कि आपके पास कितना পয়সা है পয়সা ঠিক है কত ধন আছে সেটা সমৃদ্ধি দেখায় না। সমৃদ্ধি হচ্ছে একটা মানসিকতা মাইন্ডসেট। समृद्धि जो है वो एक मानसिकता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যা জন্ম নেয় বাক্যকে প্রতিনিয়ত মনন করার দ্বারা। और वो जन्म लेता है परमेश्वर के वचन को हर दिन मनन करने के द्वारा। কি ঈশ্বরের বাক্য অর্থের ব্যাপারে কি বলেছে। कि परमेश्वर का वचन अर्थ के विषय में क्या बोल रहा है। উদাহরণস্বরূপ আমরা জগৎ টোটালি অপোজিট বলে অর্থের ব্যাপারে ঈশ্বরের বাক্য টোটালি অপোজিট বলে অর্থের ব্যাপারে কি করে ইউজ করতে হয়। उदाहरण स्वरूप परमेश्वर का वचन पैसे के विषय में अलग बोलता है और जगत जो है पैसे के विषय में अलग बोलता है। জগৎ বলে যত পারো সঞ্চয় করো। जगत बोलता है जितना हो सके उतना अपने पास रखो। किसी और का हक मार के भी अपने पास रखो। कंपटीशन है रैट रेस है सबको मार के आगे जाना है। আর হাসছি আমরা কিন্তু এটা সেলফিশ আমরা দেখেছি জগতে সবাই पॉलिटिक्स ठीक है एक को दूसरे को ठीक है टान के ऊपर जा रहा है किसी के बारे में गलत बोल के पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ रहा है। কেন জগৎ এটাই শেখায় আমাদের। जगत जो है यही सिखाता है हमें। ঈশ্বরের বাক্য বলছে যত নিও না যত লোকেদের জন্য ভাববে তত ঈশ্বর তোমার জন্য ভাববে। पर परमेश्वर का वचन बोलता है आप जितना लोगों के विषय में सोचेंगे परमेश्वर उतना आपके विषय में আপনি सोचेंगे। কতটা সমৃদ্ধিশালী তা দেখানে কত টাকা আপনার কাছে আছে তার দ্বারা আপনার সমৃদ্ধিশালীর পরিমাপ হয় না। आप कितना समृद्धिशाली आपके पास कितना पैसा बचा कर रखा हुआ है उसके द्वारा आपका परिणाम नहीं होता है। ও জগৎ দেখে ওইটুকু ছোট ভাবনা চিন্তা তাদের জগতের। ঈশ্বরের বাক্য এরকম দেখে না। वो जगत देखता है लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। ঈশ্বর বাক্য যে সমৃদ্ধি আপনি দেখতে পাবেন যে কত সে মানুষ লোকেদের জন্য বাঁচে তার অর্থকে কতটা সে ঈশ্বরের কাজে বা লোকেদের জন্য কতটা সে ইউজ করছে। पर परमेश्वर का वचन बोलता है समृद्धिशाली वो है जो परमेश्वर जो लोगों के बारे में सोचता है लोगों की मदद करता है। ওকে সমৃদ্ধি এটা না যে কত আপনার কাছে আছে সমৃদ্ধি দেখায় যে কত আপনি দিতে জানেন। समृद्धि ये नहीं है कि आपके पास कितना है लेकिन आप कितना दे रहे हैं वो समृद्धि है। হালেলুয়া। हालेलुया। যখন আপনি মনে রাখবেন যখন দিতে শিখবেন মনে রাখবেন আপনার জীবনে টেনশন আসতে যেতে যেতে শুরু করবে। अगर आप देना शुरू करेंगे तो आपका जीवन से टेंशन भी धीरे धीरे जाना शुरू करेगा। আপনি দেখেছেন অনেক ব্যক্তি আছে যারা কোনো কাজ শুরু করে आप देखे होंगे कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जब वो काम शुरू करते हैं অনেক ব্যক্তি যে কাজ শুরু করে সবসময় তারা হবে আরে যদি কমে যায় তো আরে যদি এই মাঝখানে যেতে যদি টাকা শেষ হয়ে যায় তো আরে এটা করতে করতে যদি শেষ হয়ে যায় মাঝখানে তাহলে কি করে এগোবো কাজটা। तो वो चिंता पहले ही चिंता में पड़ जाते हैं अरे ये करते करते अगर पैसा खत्म हो जाए तो मैं क्या करूँगा। সে প্ল্যান করা ভালো জিনিস प्लान करना उसका अच्छा विषय है। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছে প্ল্যানের মধ্যে তো আপনার নেগেটিভ ভাবে যদি শেষ হয়ে যায় তো। पर उस विचार में वो नकारात्मक बातों को सोचते हैं अगर ये खत्म हो जाएगा तो। যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে জানবেন সমৃদ্ধি ব্যাপারে ঈশ্বরের বাক্য কি বলে। अगर आप परमेश्वर का वचन के विषय में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन समृद्धि के विषय में क्या कहता है আপনার জীবনে কোনোদিন এই ভয় আসবে না যে আরে আমার যদি শেষ হয়ে যায় তো। तो आपके जीवन में ये डर नहीं आएगा कि अगर खत्म हो जाएगा तो। और আপনি জানেন যে যোগানদাতা আপনি না কোনো অর্গানাইজেশন না কোনো জব না যোগানদাতা ঈশ্বর। হালেলুয়া। तब आपको याद है कि देने वाला कोई और नहीं बल्कि एकमात्र देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। আজ আমাদের চার্চে খরচা অনেক বেশি। आज हमारे चर्च में खर्च जो है वो बहुत ज्यादा है। তার মানে এটা না যে পাঁচটা আমি সবসময় ঘুমাচ্ছি কি করে হবে কি করে হবে কি করে খরচা ম্যানেজ হবে। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त सोचूं कि क्या कैसे होगा कैसे सब कुछ होगा। हर वक्त नहीं कभी भी नहीं सोचता कैसे होगा करना परमेश्वर का कार्य है। ये राज्य परमेश्वर का मेरा नहीं है तो मुझे हेडेक ले मेरी जॉब करता हूँ मैं यहाँ पे
काम करना मैनेजर वो है तो वो सॉरी मैनेजर बोले सीईओ है वो है उस काम उसका है, उस समझना ये कैसे कार्य को करना है। मेरा काम है विश्वास से मैनेजर जो बोल रहा है उस हिसाब से, सीईओ जो बोल रहा है उस हिसाब से कार्य करे, ताकि जब सीईओ से मुलाकात तो सीईओ बोले बहुत अच्छा काम किया, तुमको प्रमोशन मिलेगा। हालेलुया। ওকে সো মনে রাখবেন যখন এরকম মাইন্ডসেট আপনার থাকবে যে কি হবে, শেষ হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে, কোনোদিনও আপনি শান্তির জীবনকে বাঁচতে পারবেন না। जब ऐसा ही चिंता आपके जीवन में रहेगा कि इसे खत्म हो जाएगा तो आप कभी भी शांति से नहीं जी पाइएगा। মনে রাখবেন এই চিন্তা আজ থেকে পজিটিভ ভাববো বলে আসবে না। याद रखिएगा ये चिंता आज से मैं सकारात्मक विषय में सोचूंगा ऐसा नहीं आएगा। এই চিন্তা বেরোবে একমাত্র ঈশ্বরের বাক্য কি বলে এটা বিষয় যখন জানবেন তখন আপনার জীবনে বেরোবে। ये चिंता तभी ही आपके जीवन से जाएगा जब परमेश्वर के वचन के बारे में आप जानेंगे कि वचन क्या कहता যখন है। আপনি এটা জানবেন যে আমার পরিবারের প্রত্যেকটা দরকারকে আমি না ঈশ্বর মেটাচ্ছে, ঈশ্বর নতুন রাস্তায় খুলছে, তখন আপনার জীবনে টেনশন বেরোবে। जब आप ऐसा सोचेंगे कि देने वाला मेरे परिवार में देने वाला मैं नहीं बल्कि परमेश्वर है, तब आपके जीवन से ये चिंता निकलेगी। যখন আপনি জানবেন ঈশ্বর আপনার স্রোত, আপনার প্রত্যেকটা আশীর্বাদের, তখন আপনি আনন্দের সাথে বাঁচতে শুরু করবেন। जब आप ये आप देखेंगे कि परमेश्वर ही एकमात्र आपके देने वाला स्रोत है, तभी आप सही से जी पाइएगा। একজন আমেন বলো, মানে একজনের জীবনে বিশ্বাস। প্রেজ গড। প্রভু যারা যারা আমেন বলুন তাদের প্রত্যেকটা আশীর্বাদ আমার জীবনে আমি বিশ্বাস করি প্রভু। जो विश्वास नहीं करते आराम से बैठे रहो, प्रभु जो लोग नहीं बोल रहे आमेन मेरे को दे दो। अरे अभी आ रहा है, मतलब खुद नहीं लो प्रॉब्लम नहीं, कोई और ले ले तो प्रॉब्लम है। जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा। So it is not the presence of money but the presence of the Lord that makes us prosperous। ये आपका पैसे का उपस्थिति नहीं है, ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपके जीवन को समृद्धिशाली बनाता है। এটা আপনার জীবনের অর্থ নয়, কিন্তু এটা ঈশ্বরের উপস্থিতি যা আপনাকে কি করে সমৃদ্ধিশালী করে তোলে। অনেকভাবে আমার ট্যালেন্টের জন্য আমি এগোচ্ছি। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे टैलेंट के द्वारा ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। মিথ্যা কথা না, অনেক মানুষ নিজের ট্যালেন্টের দ্বারা নিশ্চয়ই আগে বাড়ে। ये झूठ नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी है जो अपने टैलेंट के द्वारा आगे बढ़ते মনে हैं। রাখবেন যদি এখন আপনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করবেন, पर अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे আপনার চিন্তার বাইরে সে আপনাকে বাড়াবে। तो आप चिंता से बाहर आप बढ़ेंगे। যা আপনার ট্যালেন্ট কোনোদিনও নিয়ে যেতে পারতো না সেই জায়গার চেয়ে ওপরে ঈশ্বর আপনাকে নিয়ে যাবে। जहाँ आपका टैलेंट आपको नहीं पहुँचा सकता वहाँ पे परमेश्वर आपको पहुँचाएंगे। আমি বলছি না, উৎপত্তি 39 অধ্যায় 2 পদ, আদি পুস্তক 39 অধ্যায় 2 পদ, জেনেসিস চ্যাপ্টার 39 ভার্স 2, ও দেখো यहाँ पे लिखा है। সদাপ্রভু যোসেফের সঙ্গে ছিলেন তাই তিনি সাফল্য পেলেন এবং তিনি তার মিশরীয় প্রভু বাড়িতে বসবাস করতেন। যারা যা বাংলা বাইবেল নিয়ে আছেন লেখা নেই সদাপ্রভু যোসেফের সঙ্গে ছিলেন, কারণ কি যোসেফ ট্যালেন্টেড ছিল লেখা নেই, লেখা আছে সদাপ্রভু যোসেফের সঙ্গে ছিলেন তাই তিনি কি হলেন সাফল্য পেলেন। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यहोवा उसके संग था, ये कारण है। আর জগতে দেখবেন অনেক ট্যালেন্টেড ব্যক্তি তারা ঘরে বসে আছে, তারা ডিগ্রি পেয়ে তারা ঘরে বসে চাকরি নেই তাদের কাছে। आज जगत में देखिएगा बहुत सारे टैलेंटेड लोग क्या है वो घर पे बैठे हुए हैं, जिसके पास डिग्री है वो भी घर पे बैठे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। তো যেদিন প্রথম দিন মনে রাখবেন একেবারে হাতকে ওঠান আর বিশ্বাসে বলুন প্রভু আমার সাকসেস আমার ট্যালেন্টের উপর বিশ্বাস করে না, मेरा सक्सेस मेरा टैलेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता प्रभु, मेरा टैलेंट हमेशा तेरी उपस्थिति, मेरा सक्सेस हमेशा तेरी उपस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। আমার প্রভু আমার সফলতা সবসময় তোমার ওপর নির্ভর করে, তোমার উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে। প্রভু চিরকাল যেন তোমার সাথে থাকতে পারি, তোমার বাক্যের নিকটে থাকতে পারি। হালেলুয়া। ওরালাবা শারিয়ান্তারালাবা। বুঝতে পারছেন খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে, সবাই যেন মাথায়টা ঢুকে যেতে পারে। এসি আছে আরামসে, এরকম দেখছেন আপনি, মাথা যেন অন্যদিকে না চলে যায়, ঠিক আছে। দ্বিতীয় কোরিন্থীয় তার 8 অধ্যায় 9 পদ, 2 Corinthians চ্যাপ্টার 8 ভার্স 9। আজ কিছু কিছু বাইবেল ভার্স আমরা ইউজ করবো, যে অনেক পাস্টার সেটা বলে আরে এটা এরকম নয়, কে বললো ঈশ্বর অর্থের দিকে আছে, ঈশ্বর অর্থ কোনোদিন পছন্দ করে না। কিছু কিছু বাক্যকে আজ আপনাকে জানতে হবে যে ঈশ্বরের হৃদয় কি।
आज हम लोग कुछ वचन को देखेंगे जो परमेश्वर क्या कहता है उस विषय में। Because for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. কারণ তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহের কথা জানো যে তিনি যদি ধনী ছিলেন তবু তোমাদের কারণে তিনি দরিদ্র হলেন যেন তোমরা তার দারিদ্র্যের মাধ্যমে ধনী হতে পারো। ধনী জায়গা যে আন্ডারলাইন করুন, धनी होते पारो। हाँ, हिंदी में। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। যখন বলে এখন ধনী অনেক বড় বলে না 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 এটা আর্থিক ধনীর কথা বলে নেই, বাস্তব ধনী কথা বলে, এটা আত্মিক ধনীর কথা বলা হয়েছে। यहाँ पर आत्मिक धनी होने के विषय में बोला गया है। नहीं, बहुत कोई ये बोलता है कि ये आत्मिक धनी के बारे में बोला गया, आत्मिक तौर में आप धनी बन पाओ इसलिए। ठीक है, परमेश्वर आत्मिक तरीके से गरीब बना था। অনেকে বলে ঈশ্বর অ্যাকচুয়ালি প্রভু যিশু কি হয়েছিল, আত্মিকভাবে তিনি কি হয়েছিলেন, গরিব হয়েছিলেন। এবার আমি একটা কথা বলি, যদি ঈশ্বর আত্মিকভাবে গরিব হতেন, আধ্যাত্মিকভাবে যদি তিনি গরিব হয়ে যেতেন, মানে কি তার কোনো সামর্থ্য নেই, তার কোনো কিছু নেই, তাহলে কোনোদিনও চমৎকার কার্য প্রভু যিশু করতে পারতেন না। अगर यीशु मसीह आत्मिक रीति से अगर गरीब होते तो वो कभी भी चमत्कार को नहीं कर पाते। কোনোদিনও অন্ধকে তিনি চোখ দিতে পারতেন না, कभी वो अंधों को आंखें नहीं दे पाते। কোনোদিনও মৃতকে তিনি জীবন দিতে পারতেন না যদি আত্মিক দিক থেকে যদি তিনি গরিব হতেন। अगर वो आत्मिक रीति से गरीब होते तो वो कभी भी मरे हुए को जिला नहीं पाते। এটা ঠিক উল্টো, তিনি আত্মিক দিক দিয়ে গরিব হয়নি, তিনি অ্যাকচুয়ালি জাগতিক দিক দিয়ে তিনি গরিব হয়েছিলেন। ম্যাটেরিয়ালি তিনি অ্যাকচুয়ালি গরিব, অর্থের দিক দিয়ে তিনি হয়তো গরিব হয়েছিলেন। তাই যদি রাজার ঘরে না, তিনি একটা কমল জীবনকে তিনি যাপন করেছিলেন। वो आत्मिक रीति से नहीं बल्कि एक शारीरिक रीति से क्या थे, वो कंगाल हुए थे, जिसके द्वारा वो नॉर्मल जीवन को जी पाए। তো যদি ঈশ্বর আর্থিক দিক দিয়ে গরিব হয়েছিল, তাই জন্য ঈশ্বর তিনি দরিদ্র ছিলেন যেন তোমরা তার দারিদ্র্যের মাধ্যমে ধনী হতে পারো। হালেলুয়া। তো ঈশ্বর এখানে খালি আত্মিক ধনী কথা বলেনি, বাক্য এখানে আর্থিক ধনীর কথাও বলছে। यहाँ पर सिर्फ आत्मिक धनी के विषय में नहीं बल्कि वचन यहाँ पर आपको आर्थिक रीति से भी धनी होने के विषय में बोल रहा है। মনে রাখবেন, দারিদ্রতা আপনার অংশ নয়, কিন্তু প্রাচুর্যতা হলো আপনার জীবনের অংশ। दरिद्रता आपका जीवन का अंश नहीं है बल्कि आपकी भरपूरी आपके जीवन का अंश ঈশ্বর है। চান আমি যেন ভরপুর, আপনি যেন ভরপুর জীবন যাপন করতে পারেন। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भरपूरी से अपने जीवन को बिताएं। ঈশ্বর চায় আপনি যেন টেনশন ফ্রি হয়ে আপনার জীবনকে যাপন করতে পারেন। परमेश्वर चाहते हैं आप अपनी चिंताओं से मुक्त होकर अच्छी जिंदगी को जीने पाएं। ঈশ্বর চায় আপনার কাছে যেন অর্থ থাকুক, আর সেই অর্থকে এনজয় করার জন্য আপনার জন্য সঠিক স্বাস্থ্যও থাকুক। परमेश्वर चाहते हैं अगर आपके पास पैसा है तो आपको उस पैसे को आनंद करने के लिए आपके अच्छा स्वास्थ्य भी होना ঈশ্বর চায় चाहिए। আপনার জীবনে অর্থ থাকুক, সেই অর্থের সাথে আপনার জীবনে আপনার পরিবারে যেন শান্তি থাকুক। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा भी रहे, आपका जो परिवार है वो आनंद में भी যাতে रहे। এই জীবন এরকম না, ও আমার জীবন কবে আমি শেষ হবে অভিশাপ না, এই জীবন হচ্ছে আপনার কাছে উপহার যা ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে। ताकि ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के पास बोले कि ये जीवन तो अभिशाप है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशीषित होकर जिए। ঈশ্বর কোনোদিনও চায় না, ঈশ্বর আপনার জন্য আমার জন্য ক্রুশে মরেছিল যাতে এই জীবনে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারি। परमेश्वर आपके और हमारे लिए इस क्रूस पर मरा ताकि हम जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद करने রোগে पाए। থেকে কি ধন্যবাদ দেব যখন ঈশ্বরের মহিমা, আপনার মনে হয় রোগে থেকে কোনো মানুষ ঈশ্বরকে মহিমা দিতে পারে? आपको लगता है कि रोग में व्यतीत होकर कोई भी परमेश्वर की महिमा को कर ও पाता है? কোনো মানুষ অভিশাপের মধ্যে বাঁচছে, তার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা আছে। কিসের ঈশ্বরের মহিমা? সেটা দেখাবে ঈশ্বর কত দুর্বল। কোনোদিনও ঈশ্বর এরকম ভাবে মহিমা নেয় না। कभी आप सोचो कोई इंसान अगर ऐसा है कि वो हमेशा अभिशाप में गिरा हुआ, इसका जीवन में एकदम खत्म है, और वो इंसान को देख के कैसे कोई इंसान बोल सकता है अरे रे रे वाह परमेश्वर का महिमा हो रहा है? वो लोग तो ये बोलेगा अरे परमेश्वर देखो, परमेश्वर को जानने का इसका जीवन में जो था वो भी खत्म हो गया। ऐसा परमेश्वर नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में देगा, भरपूरी से देगा, सिर्फ पैसा नहीं, आनंद देगा, परिवार देगा, ठीक है, एक दूसरे के अंदर में प्रेम देगा, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में देगा जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वस्त रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, गिविंग इज द डिवाइन सेटअप फॉर योर ब्लेसिंग। या সমৃদ্ধি যেটা আমরা লিখেছি, সমৃদ্ধিকে আপনি পাবেন কি করে? যখন আপনি দিতে শিখবেন।
समृद्धि आप कैसे पाइएगा? जब आप देने सीखिएगा। দেওয়া মানে খালি চার্চে দেওয়া কথা বলছি না, देने का मतलब सिर्फ चर्च में देने के लिए मैं नहीं बोल रहा আপনি हूँ। যখন বাইরেও কাউকে সাহায্য করতে শুরু করবেন। अगर आप बाहर में भी किसी को सहायता करना शुरू करते हैं, দেওয়া মানে খালি অর্থের বিষয় বলছেন, যখন আপনি কাউকে সময়কে দেবেন, देने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को पैसे के द्वारा सहायता करें, लेकिन आप जब अपने समय को देते हैं, যখন আপনি কাউকে সময়কে দেবেন আর তাকে ঈশ্বরের ব্যাপারে বলবেন, তার দ্বারাও আপনার জীবনে আশীর্বাদ আসবে। अगर आप किसी को समय देंगे और परमेश्वर के बारे में बताएंगे, उसके द्वारा भी आपके जीवन में समृद्धि লুকা आएगी। 6:38 लूका 6:38 ঠিক আছে, এখানে লেখা আছে দান করো তোমাদেরও দেওয়া হবে। কি লেখা আছে বলুন, জোরে শুনতে পাচ্ছি না। यहाँ पे बेसिबा- यहाँ पे लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या लिखा हुआ है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप चीजों को समझो, क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी। दिया जाएगा। আমরা উল্টো করি, প্রভু যখন তুমি আমাকে দেবে তখন আমি লোকেদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়াবো। কে परमेश्वर तू देगा तो मैं दूंगा। ठीक है, ये डिवाइन सेटअप नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर बोलो दो तो तुम्हें भी। तो पहले अगर आप परमेश्वर का आशीष को दे पाना चाहते हो तो आपको पहले देना सीखना पड़ेगा। प्रथम আপনাকে দিতে শিখতে হবে। আর যখন আপনি দিতে শিখবেন, কি লেখা আছে? দান করো তোমাদেরও দেওয়া হবে। যারা বাইবেল নিয়েছেন নিয়ে আন্ডারলাইন করো, প্রচুর পরিমাণে ঠেসে ঝাঁকিয়ে তোমাদের পাত্র এমনভাবে তোমাদের কোলে ভরিয়ে দেওয়া হবে যেন তা উপচে পড়ে। বা উপচেতে আন্ডারলাইন করুন বা গোল দাগ করে দিন, উপচে পড়ে। ওকে, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला दबा हिला दबा कर, के, हाँ, और हिला हिला कर हिला हिला के और उभरता हुआ उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, तुम्हारे गोद में। क्योंकि जिस नाप से तुम बस नापते बस हो। बस। তো যদি আপনি পেতে চান আপনাকে কি করতে হবে? तो यदि आपको अगर चाहते हैं तो आपको देना भी होगा। পাস্টার আমার জীবনে স্যালারি বেশি নেই, पास्टर मेरे जीवन में सैलरी ज़्यादा नहीं है, তাই তো और ज़्यादा देना चाहिए आपको। তখন আরও বেশি তোমাদেরকে দিতে হবে। যাতে দেবেন তো কি হবে, ঝাঁকড়ে ঝাঁকড়ে। যদি আপনি বলছেন পাঁচটা কাছে অনেক অর্থ আছে, দেওয়া দেওয়া করে বুঝতে পারি। যদি আপনাকে বলেন পাঁচটা কাছে বেশি নেই, তো আপনাকে আরও দিতে হবে যাতে আপনাকে ঈশ্বর ঝাঁকড়ে ঝাঁকড়ে দিতে পারে। হালেলুয়া। अगर आपके पास नहीं है तो आपको और भी देना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको हिला हिला कर और दबा दबा कर देने पाए। আবার এতে পরে মনে রাখবেন, কে কতটা আশীর্বাদময় হবে এটা ডিপেন্ড করে ঈশ্বরের ওপর না আমাদের ওপর। বলুন আমাদের ওপর। कौन कितना आशीषित होगा वो परमेश्वर के ऊपर नहीं बल्कि हमारे ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है, কারণ যে মানদণ্ডে তোমরা পরিমাপ করবে সে একই মানদণ্ডে পরিমাপ করে তোমাদেরও ফেরত দেওয়া হবে। क्योंकि लिखा हुआ है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। হালেলুয়া। তো যত আপনি যদি চান আপনার জীবনে, ঠিক আছে, শান্তি থাকুক, তো আপনি কারোর জন্য শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। इसलिए आप अगर चाहेंगे कि आपके जीवन में शांति रहे तो आपको भी किसी के लिए शांति का रूप बनना पड़ेगा। আপনার জীবনে যেন অর্থে প্রাচুর্যতা আসে, তা আপনাকেও সেইভাবে কত আপনি চান তার ডিসাইড করে আপনি কতটা দিতে জানেন। अगर आप चाहते हैं कि भरपूरी से मेरे पास रहे तो वो निर्भर करता है कि आप कितना दे रहे हैं। আপনি ভাবুন আপনার পুরো কিছু যা বেঁচে থাকছে তা দেখে আপনি বলছেন হ্যাঁ ঠিক আছে একটু দয়া করে আমি দিয়ে দিলাম, তো ঈশ্বরও দয়া করে আপনাকে তার চেয়ে বেশি দেবে নিশ্চয়ই। अगर आप भी आपके पास जितना बचा हुआ है उसमें आप दया करके अगर आप दे रहे हैं तो आपको भी परमेश्वर दया करके ही देंगे। কিন্তু আপনার যদি ইনকামে প্রথমে হলো না আমার এই পোর্শন আমার লাইফে যদি কিছু থাকে, ঠিক আছে আমি এটা স্যাক্রিফাইস করবো, কিন্তু স্যাক্রিফিশিয়ালি আমি ঈশ্বরের রাজ্যে এরকম দেবো, আমি কাউরির জন্য এরকম দেবো, আমি কাউরির জন্য এত টাকাটা দেবো, আমি ব্লেসিং হয়ে দাঁড়াতে চাই, আমি আশীর্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে। যত আপনি দিতে শিখবেন ঈশ্বর মনে রাখবেন তত আপনাকে দিতে শুরু করবে। आप जितना देना सीखेंगे परमेश्वर उतना ही आपको देने वाला बनाएगा। ऐसा मत करना ओहो ठीक है कुछ पैसा बच गया आज थोड़ा सा 2 रुपए कुत्ता को जैसे देते सीखे हो आप लोग, खाना मिलेगा जो बच गया डॉगिंग। आज बहुत सारे लोग वैसे ही चीज़ों को कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग दे रहे तो 10 टोक कैमरा आसपास क्योंकि देंगे तो वहाँ से बाहर से या कहीं से शायद मिलेगा, ये सोच के साथ नहीं। जब आप मदद करोगे लोगों को, अगर आपका जो सिचुएशन है सैक्रिफिशियली अपना चीज़ों को रोक के बाकी लोगों के लिए आप जीना सीख जाओगे, याद रखना
उस दिन से आपके जीवन में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो समृद्धि লোভের জিনিস নয়, লোভের প্রচার নয়। समृद्धि जो है वो लोभ का प्रचार नहीं है, সমৃদ্ধি হচ্ছে দেওয়ার প্রচার। समृद्धि जो है वो देने का प्रचार যদি है। আপনি সমৃদ্ধিশালী হতে চান, আপনাকে কারোর জন্য সমৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াতে হবে। अगर आप समृद्धिशाली होना चाहते हैं तो आपको भी किसी के लिए समृद्धि के रूप में खड़ा होना होगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग दूसरे के बारे में चुगली करेंगे और खुद के जीवन में प्रभु तू शांति दे, कभी नहीं आएगा। আপনি বাইরের লোকেদের জন্য বিরুদ্ধে উল্টো পাল্টা কথা বলছেন, বচসা করছেন, আপনি হচ্ছে আপনার জীবনে শান্তি কোনোদিন আসবে না। যা আপনি দেবেন তার 10 গুণ আপনার জীবনে ফেরত আসবে। হালেলুয়া। তো আপনি যদি কাউরি বিরুদ্ধে সবসময় কিছু কিছু ব্যক্তি আছে তারা সবসময় নেগেটিভ কথা বলে লোকেদের জন্য। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो बहुत से लोगों के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव बातों को बोलते हैं। अरे पता है उसके घर, डरो मत, सामने उतरने, पता है ये हो रहा है उसके घर में, हाँ पता है उसके साथ भाग गई है। और एक इतना भी डरो मत, तुम्हारे जैसा पतला फुतला इंसान हो, ঠিক আছে। তো क्या होता है, কিছু কিছু মানুষ সব সময় তারা ভাল লাগে যখন কাউরি ব্যাপারে কোনো ঝগড়া ফগড়া হয়, তাদের ভাল লাগে। বাকিদের জীবনে দেখবেন তাদের জীবনে সব সময় ঝগড়া লেগে আছে, তাদের বাড়িতে শান্তি নেই, তাদের বাড়িতে কোনোদিনও। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब वो झगड़ा को देखते हैं, किसी के विरुद्ध में बोलते हुए देखते हैं, तो उन्हें बहुत ही आनंद होता है। तो उनके भी जीवन में वैसा ही होगा। যে মানুষ মেল মেলাপ করতে পছন্দ করে রাখবেন, তাদের বাড়িতেও সব সময় মেল মেলাপ থাকবে। जो मनुष्य मेल मिलाप करना उसको पसंद होगा, उसके घर में भी वो मेल मिलाप की ही बातें चलेंगी। আপনি যা দেবেন সেই মানদণ্ডে আপনাকেও দেওয়া হবে। तो आप जो देंगे उसी के अनुसार आपको भी दिया जाएगा। যদি ভালো জিনিস বপন করেন ভালো ফল কাটবেন, যদি বাজে জিনিস বপন করেন বাজে ফল কাটবেন। अगर आप अच्छा बोएंगे तो अच्छा पाएंगे, अगर आप बुरा बोएंगे तो बुरा ही पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चलो प्रेज गॉड। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 6। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 6 पद। এই কথা স্মরণে রেখো যে অল্প পরিমাণে বীজ বোনে সে অল্প পরিমাণে ফসল কাটবে, এবং যে অনেক পরিমাণে বীজ বোনে সে অনেক পরিমাণে ফসল কাটবে। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। तो बोता है বা बोने এই জায়গা अंडरलाइन করুন, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग कभी কখনো আমরা ঈশ্বরকে আমাদের ভাবনা চিন্তাতে ঈশ্বর ঈশ্বর এরকম এরকম ভাবতে শুরু করি। कभी कभी हम लोग अपने भावना चिंता के द्वारा ही सोच लेते हैं परमेश्वर ऐसे है, परमेश्वर वैसे हैं। আমরা অনেক সময় বিশ্বাসী দেখেছি তাদের অর্থে প্রবলেম, মারতে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করছে, প্রভু আমরা 40 दिन ফাস্টিং রাখছি, তুমি আমাদের এই জায়গা থেকে বের করবে। बहुत से मनुष्य को हम देखते हैं जिसका आर्थिक प्रॉब्लम है और वो 40 दिन फास्टिंग रख के प्रार्थना करते हैं। कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ पैसा बच जाएगा, क्योंकि फास्टिंग रखे तो खाना थोड़ा सा बच गया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फास्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज गलत मत समझना। फास्टिंग এর বিরুদ্ধে আমি কথা বলছি না, ঠিক আছে। ফাস্টিং এর একটা জায়গা আছে, फास्टिंग के विरुद्ध में मैं बातें नहीं बोल रहा, लेकिन फास्टिंग का भी एक जगह है। কিন্তু সবকিছু থেকে বেরোনো কাজ ফাস্টিং আর প্রার্থনা নয়। पर सब कुछ से निकलने का काम सिर्फ फास्टिंग और प्रार्थना नहीं है। ঈশ্বর বলছে না যে অল্প পরিমাণে প্রার্থনা করে সে অল্প পরিমাণে ফসল কাটবে, আর যে বেশি পরিমাণে প্রার্থনা করে সে অনেক পরিমাণে ফসল কাটবে। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि जो जितना प्रार्थना करता है उतना ही फल को काटेगा, क्योंकि परमेश्वर बोले जो जितना बोएगा वो उतना, तो बोना जरूरी, एक दूसरे को बोना जरूरी है, বপন করতে হবে। যদি বপন না করি প্রার্থনা সবকিছুর বিকল্প নয়। अगर हम लोग बोएंगे नहीं तो प्रार्थना से ही सब कुछ नहीं आ जाएगा। प्रार्थना অজুহাত নয়, ओके कुछ नहीं आता, हाँ चलो प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना कोई बहाना नहीं है। बहुत কি বাড়িতে গিয়ে তারা ঈশ্বরের ব্যাপারে ছেলে মেয়েদের কিচ্ছু বলবে না, সানডে পাঁচটা প্রার্থনা করে দিন, পাঁচটা ছেলেটা খুব চঞ্চল, পাঁচটা ছেলের একদম কথা শোনে না, প্রার্থনা করে দিন। প্রার্থনা ঝাড়ফুঁক, ছেলে আমি তুমি যা বলবে তাই শুনবো, এরকম কোনোদিনও হবে না আপনার জীবনে, ঠিক ও ঠিক। तो की करते হবে, क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सही रास्ते पे जाए तो आपको उसके जीवन में बीज को बोना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन का बीज को बोना पड़ेगा। प्रार्थना शॉर्टकट नहीं है, प्रार्थना शॉर्टकट নয়। আপনাকে ঈশ্বর কিছু ভূমিকা দিয়েছে, সেটাকে আপনাকে পালন করতে হবে।
परमेश्वर ने आपको कुछ भूमिका को दिया है जिसको आपको पालन करना होगा। আপনি চাইছেন আর্থিক সংকট থেকে বেরোতে, যতক্ষণ আপনি বপন করতে না শিখবেন আর্থিক সংকট থেকে আপনি বেরোতে পারবেন না। अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक संकट से निकलने का, जब तक आप बोएंगे नहीं तब तक आप उस आर्थिक संकट से नहीं निकल কারণ पाएंगे। ঈশ্বর নীতি সেট করে দিয়েছে, যে যেমন পরিমাণে বপন করবে সে তেমন পরিমাণে ফসল কাটবে। परमेश्वर ने नियम को बना दिया है, जो जितना बोएगा उतना ही परिमाण में वो फल को काटेगा। মানে ঈশ্বর সাক্ষী আছে আমার জীবনের। और परमेश्वर साक्षी है मेरे जीवन में। এরকম না যে আমি আপনাকে বলছি আর আমি বলছি হ্যাঁ আপনার বপন করুন, আমি তো পাঁচটা আমার দরকার নেই বপন করার। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि और मैं तो पास्टर हूँ, मुझे कुछ बोने का जरूरत नहीं है। आप लोग बो, आप लोग खोल खोल के बो, ठीक है। ये चर्च का ये दो, चर्च का वो दो, चर्च का लाइट खराब हो गया ये दो, चर्च में ये, कभी आज तक आप लोग के सामने हम लोग ज़रूरत को नहीं रखे, क्योंकि ये दया वाला चीज़ नहीं है। वो परमेश्वर को आप दया नहीं कर सकते हो, बट बोगे तो काटोगे। और ये परमेश्वर जानता है, मैं जानता हूँ, मेरे साथ जो लोग इंटरनली रहता है, जो मेरे अकाउंट्स को जानता है, वो जानता है कि मैं फेथफुली अपने जीवन में बोता हूँ। আমি জীবনে বিশ্বস্ততার সাথে আমি বপন, এরকম প্রচার আমি করছি না যেটা আমি নিজে করি না। मैं ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूँ जो मैं खुद नहीं करता। আমি নিজে করি আর আমি তার ফল দেখতে পাচ্ছি, তাই জন্য আপনাকে বলছি। मैं खुद करता हूँ और उसका फल भी देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। পাঁচটা যখন আপনি বপন করেন, ঈশ্বর কোনো কথা বলে? কোনো কথা বলে না। ঈশ্বর বাক্যে অলরেডি কথা বলে দিয়েছে। पास्टर जब आप बोते हैं तो परमेश्वर आपसे कुछ बातें करते हैं, परमेश्वर उस समय कुछ नहीं बोलते क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया है। অনেক মানে যখন ঈশ্বর বলবে তখন থেকে বপন করব। बहुत से लोग बोलते हैं कि जब परमेश्वर बोलेंगे तभी मैं बोऊंगा। এরকম মানুষ কি বলুন তো? পাগল মানুষ, ऐसा इंसान पागल इंसान है। এরা ইনসান, ঠিক আছে। ঈশ্বর অলরেডি বাক্যে বলে দিয়েছে, परमेश्वर ने वचन में बोल दिया है। तो ईश्वर और स्वर्ग থেকে বলে ए भाई दे दे, देख वचन में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं बोले, वो वचन में लिख दिया है, जो बोएगा वो काटेगा। प्रॉब्लम হচ্ছে অনেক মানুষ খালি সবসময় দর্শনের পিছনে দৌড়াচ্ছে। समस्या ये है कि बहुत से लोग अभी दर्शन के पीछे दौड़ते हैं। দর্শন এই প্রফেট বললে তবে করব। कि ये भविष्यवक्ता बोलेंगे तभी मैं करूंगा। প্রফেট আপনার জীবনের আপনাকে উদ্ধার দেয়নি, ঈশ্বর আপনাকে উদ্ধার দিয়েছে। वो भविष्यवक्ता आपके जीवन में उद्धार को नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने आपको उद्धार को दिया है। প্রফেট আপনাকে খালি বলতে পারে যে রাস্তায় আপনি চলছেন, আপনাকে কনফার্মেশন দিতে পারে হ্যাঁ ঠিক রাস্তায় চলছো। प्रोफेट वो जो भविष्यवक्ता है आपको सही रास्ते को बता सकता है, लेकिन वो आपको उद्धार को नहीं दे सकता। সেটাও সব সময় নয়, वो भी सब समय नहीं। ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে সব সময় সঠিক জায়গায়, আপনাকে প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের বাক্যকে দেখতে, ঈশ্বরের বাক্যের অনুযায়ী আমি যাচ্ছি কি যাচ্ছি না। पर परमेश्वर का वचन ही आपको सही रास्ता को दिखा सकता है, तो आपको हर दिन उसे पढ़ना है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं। ভবিষ্যদ্বক্তা ভুল বলতে পারে, ঈশ্বরের বাক্য ভুল বলবে না। भविष्यवक्ता गलत बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं बोल सकता। আমার জীবনে এমন ভবিষ্যৎবাণী হয়েছে যেটা ঈশ্বর অনুযায়ী ছিল না, আর হয়নি কোনোদিনও সেটা। मेरे আর আমি जीवन- জানতাম সেটা। অনেক সময় ভবিষ্যৎ বক্তারা মানে झूठा भविष्यवक्ता जो बोलते हैं वो लोग भी चाल चलता है, ओ ये बोल देते, ये कर देते। नहीं, परमेश्वर आपको समझ में नहीं आएगा बहुत सारे कौन झूठा है कौन सही है, बट परमेश्वर का वचन 100% सही है। और उसके साथ जब चलोगे धोखा नहीं खाओगे। যদি তার সাথে চলেন কোনোদিনও ধোকা খাবেন না। তো কি হচ্ছে, আমাদের কি বলেছে, যদি আপনি আর্থিক দিক উন্নতিকে চান তো কি করতে হবে? আপনাকে অর্থের বীজকে বপন করতে হবে। आपको आर्थिक बीज को बोना होगा। अगर आपको आर्थिक दिशा से आपको उन्नति चाहिए तो आपका आर्थिक बीज को बोना पड़ेगा, क्योंकि ये नीति वचन में परमेश्वर ने सेट कर दिया है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद। হোম বলি পেয়ে কি বলি দেওয়ার থেকে বাধ্য হওয়া ভালো, ঠিক আছে। ওবিডিয়েন্স ইজ বেটার দ্যান স্যাক্রিফাইস, ঠিক আছে। আপনি কি বলি দিচ্ছেন তার চেয়ে হচ্ছে ওবিডিয়েন্স হচ্ছে সবচেয়ে বড় বলি, আজ্ঞাকারিতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বলি। ঈশ্বরের বাক্যের উপর আজ্ঞাকারিতা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় স্যাক্রিফাইস। परमेश्वर का वचन के ऊपर आज्ञाकारिता ही आपका सबसे पहला सेक्रीफाइस है, बलि है। सबसे बढ़िया बलि है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस से भी बहुत बढ़िया है। जब आप ओबीडियंट होते हो परमेश्वर के वचन के ऊपर, যখন ঈশ্বরের বাক্যের উপর আপনি আজ্ঞাকারী হয়ে চলেন, এটা স্যাক্রিফাইসের চেয়েও অনেক ওপরে। হালেলুয়া। মনে রাখবেন, ঈশ্বর আপনার কিন্তু অর্থের পিছনে নেই। परमेश्वर आपके पैसे के पीछे नहीं है। पैसा पैसा, परमेश्वर आपको पैसे के पीछे नहीं जा रहा है। बहुत से बोले ईश्वर কেন আমার অর্থের পিছনে ঈশ্বর কেন আছে?
ঈশ্বরের কি অর্থের দরকার অনেক মানুষ জিজ্ঞেস করে बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे पैसे के पीछे परमेश्वर क्यों आ रहे हैं क्या पैसे की जरूरत है परमेश्वर को নেই परमेश्वर को पैसा ঈশ্বরকে পয়সা দরকার নেই ঈশ্বর আপনার হৃদয়ের দরকার আছে কিন্তু ঈশ্বরকে তোমার পয়সার দরকার নেই কিন্তু ঈশ্বরকে তোমার হৃদয়ের সো দরকার আছে গড ইজ নট আফটার ইউর মানি বাট গড ইজ আফটার ইউর হার্ট আপনার হৃদয় বলুন হৃদয় সে আপনার হৃদয়ের পিছনে আছে আপনার পয়সার পিছনে সে নেই परमेश्वर आपके हृदय के पीछे है आपके पैसे के पीछे नहीं সে আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসতে চায় যেখানে পরিস্থিতি আপনাকে একটা কথা বলবে কিন্তু তার চেয়েও বেশি ঈশ্বরের বাক্য আপনার জীবনে জোরে জোরে কথা বলবে वो आपको एक ऐसी जगह पे लेकर जाना चाहता है जहाँ परिस्थिति आपसे बातें तो करे लेकिन उससे भी ज्यादा परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा মানে যখন আপনি মুক্ত হস্তে দান করেন जब आप अपने खुला हाथ पूरे में हाथ आप को देने तो- फैलाकर जब आप देते हैं আপনি বিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করেন যে আমি ঈশ্বরের সে অবিরাম সরোবরের নিচে আমি আছি आप विश्वास के साथ घोषणा करते हो कि परमेश्वर मेरा स्रोत तू है मैं तेरा आशीषों के नीचे मैं खड़ा हुआ मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं मैं तेरे वचन के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ और तेरे वचन को मैं आज्ञाकारी होकर मैं अपने हाथ को खोल रहा हूँ प्रभु मुझे ब्लेसिंग बना मुझे आशीष का कारण बना मैं सेल्फिश बनना नहीं चाहता हूँ मैं पैसा सिर्फ मेरे लिए रखना नहीं चाहता हूँ पर परमेश्वर वचन में गॉड इज एबल टू ब्लेस यू अबंडेंटली परमेश्वर आपको बहुत आई से आशीषित करेगा गॉड इज एबल टू ब्लेस यू अबंडेंटली सो दैट यू विल आप क्या करोगे ताकि आप फूट के निकलो हर एक अच्छा कार्य में अगर आप अगर এখন যদি আপনার জীবন খালি দেখছেন যে ও খালি আমি খালি আমার ঘর আমার সংসার আমার কাজ এটা নিয়ে পড়ে আছেন আপনি ব্লেসিংয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াননি প্রথমে যদি আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদকে পেতে চান যদি আপনি চান যে কোনোদিন আপনার কোনো কমিঘটি না হয় লোকেদের জন্য বাঁচতে শুরু করুন अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कोई कमी घटी ना हो तो आप लोगों के लिए आप बचना शुरू कीजिए ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বাঁচতে শুরু করুন परमेश्वर के राज्य के लिए जीना शुरू कीजिए মানে একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি হলেন তিনি যিনি ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে एक समृद्धशाली व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के राज्य की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करता है তার রাজ্যকে প্রথমে রাখে वो परमेश्वर के राज्य को जो पहले रखता है মনে রাখবেন সেই সময় যখন তাকে প্রথমে রাখবেন কিছু কিছু স্যাক্রিফাইস আপনাকে করতে হবে अगर आप परमेश्वर के राज्य को पहले रखते हैं तो उसके लिए आपको कुछ कुछ त्याग को करना होगा কিন্তু পরবর্তীকালে যা স্যাক্রিফাইস করছেন তার 10 গুণ আপনি ফেরত পাবেন लेकिन उसके बाद जब आप जो सेक्रीफाइस आपने किया जो त्याग आपने किया उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा হালেলুয়া हालेलुया আমি বলছি ঈশ্বরের বাক্য বলে যে প্রথমে তার রাজ্যে তার ধার্মিকতার সন্ধান করুন যা কিছু আপনার জীবনে দরকার সবকিছু দেওয়া হবে क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता को खोज कीजिए तो आपकी जो भी जरूरत है वो परमेश्वर आपके जीवन में देगा हालेलुया 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 তো अगर आपको याद रखना যদি আপনাকে ধনী হতে হয় আপনাকে কি করতে হবে अगर आपको आर्थिक रूप से अगर न परमेश्वर का आशीष को पाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको आर्थिक बीज को क्या करना पड़ेगा বপন করতে হবে যখন করবেন যখন মরাবেন যখন কারণ হয়ে দাঁড়াবেন তখন আপনার জীবনও চমৎকার হবে ওকে एक बात बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ একটা জিনিস বলে ঠিক আছে পিতর যখন প্রভু যিশু পিতরের নৌকা এসেছিল পিতর যখন প্রভু যিশু যখন পিতরের নৌকা এসেছিল जब प्रभु यीशु मसीह और पतरस का नौका जब आया था মনে রাখবেন তখন প্রভু যিশু পিতরকে বলছিল যে পিতর চলো সকালবেলার মধ্যে পিতর বলছে দুপুরবেলা চলো ওইখানে গিয়ে জালকে ফেলো तब यीशु मसीह ने पतरस को सुबह सुबह कहा कि चलो वहाँ पे जाकर उस जाल को फेंको পিতর কিন্তু লেজি মানুষ ছিল না पतरस लेकिन आलसी इंसान नहीं था পিতর কিন্তু খেটেছে তার কাজ যা করা সে করেছে पर पतरस जो है वो बहुत ही परिश्रमी इंसान था जो जिसको वो करना था उसने वो किया था পিতা বলো না আমি পুরো রাত আমরা খেটেছি পুরো রাত খেটেছি যা কিছু করা সব কিছু যত এক্সপিরিয়েন্স ছিল সব লাগিয়ে দিয়েছে কিন্তু একটা মাছও আসেনি पतरस ने बोला कि पूरा रात मैंने काम को किया है लेकिन मुझे एक भी मछली नहीं मिली আর আপনি সকালবেলায় আপনি আমাকে বলছেন ওইখানে যেতে और आप मुझे इस सुबह आप बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ वहाँ चलो যেখানে কোনো ব্যক্তি যায় না সেই সকালবেলা কোনোদিনও মাছওয়ারা মাছ ধরতে যায় না क्योंकि सुबह में कोई भी जो मछुआरा होता है वो कभी भी मछली पकड़ने नहीं जाता কিন্তু है প্রভু যিশু যখন পিতরকে বলছিল পিতা বলল প্রভু আমি সারা দিন খেটেছি কিন্তু যেহেতু তুমি বলছো আমি যাব पर पतरस ने यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि आप बोल रहे तो मैं नहीं जाऊंगा लेकिन पतरस ने बोला कि मैं पूरा रात परिश्रम को किया हूँ लेकिन जब आप बोल रहे तो मैं जाऊंगा
কি তার সে কি আলাদা ফিল করতে পেরেছে, সে কি মাছ দেখতে পাচ্ছিল? কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। वो क्या अलग कुछ अनुभव कर रहा था? क्या वो मछली को देख पा रहा था? वैसा कुछ नहीं था। তার 5 সেন্সেস বলছিল কোনো কোনো মতে সময় না, রাতে বেলা পাওনি সকালবেলা হবে না। उसका पंच इंद्रिय यही बोल रहे थे कि रात को अगर तुमको नहीं मिला तो अभी भी नहीं मिलेगा। তার বাকি বন্ধু বান্ধবরা বলছিল আরে পাগল আছিস নাকি, পুরো রাত খেটেছি কিছু হয়নি, এখন তুই যাচ্ছিস যা, বোকামি এটা। और उसके और भी मित्र उसको बोल रहे थे कि तुम पागल है क्या, रात भर तुमने काम किया है फिर से तुम जा रहे हो, जा, ये पागलपन है तुम्हारा। সো পিতরের কাছে অনেক কিছু ছিল, ফিল, যদি তার ফিলিংসে পৌঁছায়, তার ফিলিংস বলছিল কিছুই হবে না, কারণ লোকেরা সবসময় তাকে বলছে সব জিনিস, তার পঞ্চেন্দ্রিয় দেখাচ্ছে, তার এক্সপিরিয়েন্স বলছে সম্ভব নয়। ये पतरस का जो पंच इंद्रिय था वो उसको बता रहा था कि ये संभव नहीं है, অসম্ভব এটা। ये असंभव है। কিন্তু পিতা বলল আমি আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর নয় প্রভু, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সের ওপর না, আমি তোমার কথার ওপর বিশ্বাস করব। যখন সে গেল এত মাছ ধরলো যে সে মাছের জাল ছেঁড়ার উপক্রম হয়েছিল, বাকি লোকেরা এসে তাকে সাহায্য করছে। पर पतरस ने कहा कि मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं, बल्कि आप जब बोल रहे तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। जब वो वहाँ पर गया तो इतना वो मछली पाया कि उसका जाल भी फटने लगा। মনে রাখবেন অনেক সময় এরকম হয়, অনেক সময়, বেশিরভাগ সময় কি সব সময় যখন ঈশ্বর কোনো কিছু চায়, মনে রাখবেন আপনার ফিলিংস কোনোদিনও সেই অনুযায়ী চলবে না। जब परमेश्वर हर समय जब परमेश्वर आपके जीवन से कुछ चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी फीलिंग्स कोई काम नहीं करेगी। আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বলবে আরে আমার কাছে টাকা নেই আর ঈশ্বর বলছে আমাকে দিতে, কি করে দেবো? आपके पंच इंद्रिय बोलेंगे कि अरे अब तुमको देना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कैसे दोगे? ও আমার জীবনে শান্তি নেই, আমি লোকের শান্তির জন্য কি প্রচার করতে যাব? मेरे जीवन में खुद शांति नहीं, मैं दूसरों की शांति के लिए क्या प्रचार करने ও जाऊंगा? আমার বাড়িতে আধা লোক আছে যে ঈশ্বরকে জানে না, আমি লোকের কাছে কি ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে যাব? मेरे घर में आधा लोग परमेश्वर को नहीं जानते, मैं क्या परमेश्वर के प्रचार को लेकर जाऊंगा लोगों के যখন पास? ঈশ্বরের বাক্যের আজ্ঞাকারী হবেন, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी होंगे, আপনি 5 সেন্স বলে প্রভু আমি সব কিছু করে নিয়েছি, আমি অনেক চেষ্টা করে নিয়েছি এই সংকট, আর্থিক সংকট থেকে বেরোনোর, কিন্তু তোমার বাক্য বলছে তা আমি আজ থেকে দিতে শিখবো। आपकी पंच इंद्रिय कहेंगे कि मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना दोगे तुम्हें भी आशीष मिलेगा, तो मैं दूंगा। इसीलिए मैं दूंगा। पतरस के जैसे जब आप बनोगे तो पतरस के जैसे चमत्कार भी आप अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। যখন পিতরের মতো হতে শুরু করবেন, মনে রাখবেন পিতরের মতো চমৎকার আপনি দেখবেন। যদি পিতরের কাছে 100টা রিজন ছিল না যাওয়ার, पतरस के पास 100 रीजन था कि वो ना जाए, পিতর বলতো না আমার এক্সপিরিয়েন্স এরকম বলে না, पर पतरस वहाँ पे बोलता है कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं হতেই बोलता। পারে রাতে বেলা, সকালবেলা, রাতে বেলা পাইনি সকালবেলা হতেই পারে না। रात को अगर नहीं मिले तो सुबह में हो ही नहीं सकता আর है। তার কাছে হয়তো 100 জন বন্ধু চলে আসতো সাপোর্ট করার জন্য, ঠিক কথা বলছে, পিতর ওর কথা শোনো না। और उसके 100 दोस्त और आ गए और उसको बोल रहे कि सही बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। পিতর যদি সে 100টার কারণকে শুনতো তাহলে পিতর এই চমৎকারকে দেখতে পেতো না। अगर पतरस वो 100 को कारण को अगर वो सोचता तो वो आगे नहीं देख पाता उस चमत्कार को। আমার কাছে 100টা লজিক আছে, 100টা দরকার আছে, যার জন্য আমি বলতে পারি আমি আমার টাইস দেবো না। আমি আমার কথা বলছি। मेरे पास 100 जरूरतें हैं जिसके द्वारा मैं बोल सकता हूँ कि मैं टाइट्स नहीं दूंगा। আমার কাছে 100টা রিজন আছে যার জন্য আমি বলতে পারি না আমরা চার্চে মিনিস্ট্রিটা এত বাড়াবো না, আমাদের কাছে এত টাকা নেই। मेरे पास 100 रीजन है जिसके द्वारा मैं बोल सकता हूँ कि मैं चर्च या मिनिस्ट्री में इतना नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। কিন্তু আমি একটা জিনিস যে বিশ্বাস অদৃশ্য বস্তুর প্রমাণ। पर मैं परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास जो है वो अदृश्य बातों का परिणाम है। আমি জানি আমার প্রোভাইডার ঈশ্বর প্রভু যিশু, मैं जानता हूँ कि मेरा देने वाला परमेश्वर है, তার জন্য আমি আমার খুলে হাতে আমি আমার জীবনে ঈশ্বর রাজ্যের জন্য কাজকে আমি ছড়াচ্ছি। इसीलिए मैं अपने खुले हाथों से परमेश्वर के राज्य को फैला रहा हूँ। যত আমি দিতে পারি আমি রাজ্যের জন্য দিচ্ছি। जितना मैं दे सकता हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए मैं दे रहा আর हूँ। আপনাকে একটা কথা বলি, আমি রিস্ক নিচ্ছি না। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं इसके लिए रिस्क नहीं ले रहा हूँ। बहुत से बोले कि विश्वास एक रिस्क है, विश्वास रिस्क नहीं है, विश्वास विश्वास है। विश्वास में 100% फल आएगा, बट अगर आप विश्वास रहेगा, विश्वास का दोगे तो आप फल को देखोगे 100%। तो इसलिए नहीं ओ मैं रिस्क ले रहा हूँ, सब कुछ मैं दे रहा हूँ परमेश्वर के लिए, नहीं कि मैं जानता हूँ मैं जो दे रहा हूँ उससे 1000 गुण मुझे परमेश्वर देगा। जब देगा तब और ज़्यादा मैं दूंगा ताकि मैं ब्लेसिंग का कारण और बन पाऊँ लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो মনে রাখবেন একটা জিনিস, যত দিতে শিখবেন ঈশ্বর দিতে আপনাকেও শিখবে। तो जितना आप देना सीखेगा परमेश्वर भी आपको देंगे। আজ আপনি কার কথা শুনবেন এটা আপনাকে ডিসাইড করতে হবে। आज आप किसकी बात को सुनेंगे ये आपको आज सोचने की जरूरत है। আপনার লজিক, আপনার এক্সপিরিয়েন্স, आपका लॉजिक या आपका एक्सपीरियंस না ঈশ্বরের বাক্যের কথা। या फिर परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
तीसरा जी एक बात बोल के मैं अभी ख़त्म करूँगा, इसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ओके, हिंदी में बोल दिया। ओके, ये कोई ফর্মুলা, এটা কোনো ফর্মুলা নয়। ये कोई फॉर्मूला नहीं है যে ফর্মুলা ও আপনি কপি করছেন, এবার আপনি ফল দেখে নেবেন। कि वो फॉर्मूला को आप कॉपी कर रहे हैं और अब आपको फल दिख जाएगा। ফর্মুলা ইন দ্য সেন্স কি বলতে হচ্ছে, ও অন্য একজন দিচ্ছে, ও তার জীবনে দিয়েছে, তার জীবনে কার্য হচ্ছে, চলো আমিও দেবো, আমার জীবনেও কার্য হবে। फॉर्मूला ये है कि आप अगर किसी के जीवन में देख रहे हैं कि वो दे रहा है तो उसको मिल रहा है तो मैं भी अब दूंगा। নেই 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 নেই, ফর্মুলা রাখবেন, বিশ্বাস কাউকে দেখে না, বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য থেকে আপনার জীবনে আসতে হবে। याद रखिएगा कि विश्वास किसी को देख के नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास आएगा। আপনাকে ও এই মানুষ দিয়েছিল এত টাকা পেয়েছে, আমি যদি দিই আমিও এরকম টাকা পাবো। अगर आप बोलेंगे कि वो मनुष्य दिया था इतना पैसा उसको मिला था, मैं भी दूंगा, मुझे भी সে मिलेगा। 10,000 টাকা পেয়েছিল, সে পরে 10 লাখ টাকা পেয়েছে, ঈশ্বর টাকা দিয়েছে, আমিও 10,000 টাকা দেবো যাতে আমারও 10 লাখ টাকা এক্স্যাক্টলি আমার আসতে পারে। वो 10,000 दिया था इसीलिए उसको 10 लाख मिला था, मैं भी 10,000 दूंगा, मुझे भी 10 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है। বিশ্বাস আপনাকে ঈশ্বরের বাক্যে করতে হবে। विश्वास आपके परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगा। क्यों मैं दे रहा हूँ? ताकि वो दिया और उसको 10 लाख मिले, इसने मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर देने वाला, मेरा परमेश्वर मुझे कहा है कि मुझे ब्लेसिंग का रीज़न बनना है, मुझे आशीष का कारण बनना है। हालेलुया। आपको शायद 10 लाख मिले, आपको 20 लाख मिले, और वो पाने के लिए लालच में हम लोग नहीं दे रहे, क्योंकि परमेश्वर मुझे बोला है ये जीवन सिर्फ मेरा नहीं है, मैं सेल्फिशली मैं अपना जीवन को नहीं जी सकता, मुझे कारण आशीष का कारण बनना है। तो ये नहीं आज मैं इतना दे रहा हूँ तो मुझे इतना मिलेगा, मैं दे रहा हूँ तो मुझे भरपूरी से मिलेगा, मुझे पता है, ठीक है। और वो भरपूरी इसलिए नहीं ताकि मैं अपने लाइफ में सिर्फ खो के एंजॉय करूँ, ताकि मैं और परमेश्वर का ब्लेसिंग बन पाऊँ। हाँ, एंजॉय भी करूँगा बट ब्लेसिंग, मेन कारण परमेश्वर का ब्लेसिंग मैं बनूंगा, इसलिए मैं दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু এই মুহূর্তে রালাবাস শিখারে প্রভু এখান থেকে প্রত্যেক মানুষ যেন দিতে শেখে। ওকে, এটা আমি বলার চেষ্টা করছিলাম। मैं क्यों एक्चुअली इसी मैं आई विश के कोई मुझे जो मैं आपको प्रचार कर रहा था, जब मेरा स्टार्टिंग का समय था परमेश्वर में, कोई मुझे ये सब बताया होता कि मुझे हमेशा सिखाया कि मैंने सुना कि देना ज़रूरी है, अपना दशमांश दो, अपना ये दो, मैं लोगों को भी देते देखा हूँ, ठीक है, पर मुझे कभी कारण नहीं पता था क्यों देना है, देने से क्या होगा। तो बहुत सा समय में मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत समय में कुरकुरा के दिया, बहुत से समय में दशमांश नहीं दे, बोला दशमांश नहीं दे सकता प्रभु, लोग दे रहा है। बहुत सारे समय में लोग इतना बोल के मैं हाथ में छुपा के दिया ताकि कोई लोग देख ना पाए मैं इतना कम दे रहा हूँ, क्योंकि हमेशा कुरकुरा के देता, अरे इस पैसा से तो ये होता, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर बोला लोग दे रहा हमको भी, ये क्या है, कॉपी करना लोगों को, इससे कभी भी फल नहीं आएगा। मैं जब जाना कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कारण को रखा है, कहाँ से, कोई दर्शन नहीं आया, परमेश्वर का वचन बोला, जब वचन को जानना सीखा, वचन को सीखा, तब मुझे समझ में आया इस काश में इस चीज़ को पहले जान लिया होता तो आज शायद सिचुएशन अच्छा है और भी अच्छा होता, और भी शायद इस समय में और भी ब्लेसिंग का कारण में बन जाता। हालेलुया। तो याद रखना कॉपी नहीं करना। इसलिए कोई अगर आप पूछ सकते हो क्यों मैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, क्यों मैं समृद्धि के बारे में हमेशा रिमाइंड देना चाहता हूँ सभी को, क्यों मैं चाहता हूँ इस चर्च में हर कोई परमेश्वर को आशीष जो परमेश्वर आपके लिए रखा है वो आप मिल पाए आपको। इसलिए याद रखना ये नहीं कि चर्च में हर दिन कोई नया नया प्रचार, जो वचन है वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा एक के बाद एक, कभी भी रिपीट भी होगा ताकि आपके अंदर वो घुस पाए कि आप दे रहे हो, जस्ट देख के नहीं हो सब दे रहा है। बहुत सा समय ऐसा होता है, बहुत सारे विश्वासी ओ ये दे रहा, सामने क्या हुआ, वो सुजय आ गया लेने के लिए, अब क्या करें, मुंह के सामने रखा हुआ है, कुछ तो देना पड़ेगा, ये सोच से अगर दोगे तो वो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे इंसान है जो अपना पूरा अकाउंट खाली कर चुका है मगर कुछ हुआ नहीं उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, कॉपी करो, वो दे रहा है हम भी देंगे। आपको कारण जानना जरूरी है कि क्यों आप दे रहे हो। आपका विश्वास, अगर आपको कारण नहीं पता, वचन को पढ़ो, पढ़ते रहो, मेडिटेट करते रहो जब तक आपके हृदय में विश्वास को लेके नहीं आता। जब विश्वास आएगा देना सीखो विश्वास के साथ। याद रखना कार्य आप अपने जीवन में देखोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा मिनिस्ट्री नहीं बोलूँगा, मैं आपको सामने सच बात बोलूँगा। मेरा स्टार्टिंग मिनिस्ट्री में मैं कभी भी दशमांश नहीं दिया। मैं हमेशा ये सोचता परमेश्वर तू जानता है मेरे सिचुएशन को, परमेश्वर मेरा लाइफ में ये है, मेरे अभी स्टार्टिंग किया है, परमेश्वर इतना तो पैसा, इतना ज़रूरत है। ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मैं हमेशा परमेश्वर बोलता रहा, परमेश्वर तू जानता है,
परमेश्वर ये कोई नियम नहीं है। मैं हमेशा ढूंढता था कहाँ से बोल पाऊँ कि नहीं नहीं ये वचन के अनुसार नहीं है दशमांश नहीं देना। तो याद रखना, जब से मैं चीज़ों को जाना और सीखा देना, परमेश्वर का सिर्फ पैसा नहीं आया, परमेश्वर शांति आया, परमेश्वर के भरपूरी को मैं देखा, परमेश्वर कार्य को मैंने अपने जीवन में देखा। ठीक है, और मैं फिर से बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ 5 साल आप भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, देख लेना कहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि मेरा विश्व, मेरे को यहाँ पे ये नहीं बोला कि रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क नहीं, मैं विश्वास के साथ परमेश्वर को दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे परमेश्वर मुझे 10 गुना वापस देगा। और 10 गुना वापस देने का ये भी परमेश्वर ने रखा है कि गुना वापस देने के बाद भी 10 गुना बढ़ाना भी है। एक पास्टर, एक परमेश्वर के दास पास्टर रिक वॉरेन, ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जब परमेश्वर ऊपर का आपका स्टैंडर्ड को बढ़ाता है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़े या ना बढ़े, बट आप स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं पैसा, ठीक है, दशमांश शुरू किया था 2000 से, आज शायद वो बहुत ऊपर है, बट आज भी 2000 दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, आप दो, हम लोग देखो, आप अगर 2000 दो, 1000 दो, अब दशमांश 10% दो, 2% दो, 0.5% दो, कुछ ना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना प्यार एक दशमांश वाले को किया जाएगा उतना ही प्यार आपसे भी किया जाएगा, क्योंकि ये कोई, हम लोग कोई हफ्ता नहीं ले रहे, बट ये आपको सिखाने के लिए ताकि आपके जीवन में ब्लेसिंग आए। किसी को यहाँ पे कोई भी जाके पूछा नहीं कि कितना दशमांश देते हो, क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो, कोई नहीं पूछता है। और अगर कोई आगे जाके पूछता है तो याद रखना मेरे थ्रू नहीं गया, वो खुद गया होगा, कोई नहीं करता, मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दशमांश हम लोग को, लोग चर्च को धनी बनाने के लिए हो, सब दो, जब बहुत सा जगह में होता है, पास्टर जो एक हड़प पीछे जा रहे हैं, दशमांश दो, जमीन बेचा ना, पैसा आया, दशमांश दो। ये दशमांश कोई हफ्ता नहीं है, ये आपका हृदय से होना चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती मैं ले भी लूँ ना, वहाँ से कोई फल नहीं आएगा। और वो चीज़ लेके भी मैं कुछ धनी नहीं बन जाऊँ। परमेश्वर वो चीज़ भी जानता है कैसे चोरी, परमेश्वर का राज्य चोर का नहीं है। अगर मैं चोरी करूंगा तो मेरे पास भी रहेगा नहीं। अगर जबरदस्ती आपसे हफ्ता लूंगा, ये हफ्ता नहीं यार, ये चर्च ये नहीं है आपके जीवन में, ये आपके लिए सीखने का चीज़ है। सीखो, अगर विश्वास में बढ़ोगे आप अपने जीवन में खुद फल को देखोगे। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम, आप जहाँ पे हो वहाँ पे रह जाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर को वचन बोल, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं क्या बोला, मैं तो ये बोला मैं दर्शन देखा दो, नहीं, वचन हमेशा दर्शन वचन के विरुद्ध में नहीं जाता है। दर्शन हमेशा वचन के साथ जाएगा। अगर आपको पता कौन भविष्यवक्ता सही है झूठा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर वचन के विरुद्ध में नहीं जाता है। इसलिए हमेशा मैं हमेशा मेरा प्रचार का मूल केंद्र में बाइबल रहता है, क्योंकि बाइबल मेरे जीवन को परिवर्तन किया, वचन आपके जीवन में को परिवर्तन किया, वचन आपके जीवन को परिवर्तन कर रहा है, वचन मेरे जीवन को भी परिवर्तन कर रहा है। मैं नहीं बोला मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ। जब मैं प्रचार तैयार करता हूँ, मेरे लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि प्रभु मुझसे बात कर। जब मैं तैयार कर रहा था, परमेश्वर और कुछ दिखा मुझे कि मुझे यहाँ पे देना ज़रूरी है, ये जगह में एज अ चर्च हम लोग को कोई चर्च के लिए ब्लेसिंग का कारण बनना है। ये नहीं कि जब बहुत बड़ा हो जाएगा, होगा, ज़रूर होगा, 100% होगा, बट कब होगा? जब हम लोग देना सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ा देर आंखों को बंद करेंगे। राला बादशाह उड़ाला बादशाह खारी अंतरे लेबे होड़ाला बादशाह बेअंतर लबो शाबा बड़ा बड़ा लबा खारंतरा लबा। धन्यवाद पिता आज के समय के लिए, ধন্যবাদ ঈশ্বর আজকে সময় যে তুমি দিয়েছিলে প্রভু। আমার প্রার্থনা প্রত্যেক মানুষ যেন তোমার সেই দশমাংশ, তোমার প্রভু যে डिवाइन सेटअप के যেন তারা जानते पाए, डिवाइन सेटअप को वो समझ पाए प्रभु। तू परमेश्वर पैसे के पीछे नहीं है प्रभु, तू उसका हृदय के पीछे है प्रभु। प्रभु तू हम लोग को पैसा देने के द्वारा तू कुछ सीख, ये नहीं कि हम लोग को पैसा से फल आएगा, हम लोग को हृदय तैयार हो रहा है जहाँ पे बोल रहे मेरा पैसा मेरा स्रोत नहीं है, परमेश्वर तू मेरा ब्लेसिंग का स्रोत है प्रभु। আমার অর্থ আমার জীবনে আশীর্বাদের কারণ নয়, তুমি আমার আশীর্বাদের কারণ প্রভু। প্রভু হ্যাঁ ট্যালেন্ট আছে, ট্যালেন্ট আমাদের একটা জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রভু তোমার বাক্য প্রভু, তোমার উপর ভরসা প্রভু, তোমার উপস্থিতি যে আমাদের ট্যালেंट যেখানে নিয়ে যেতে পারবে না সেখানে তুমি নিয়ে যাও प्रभु। प्रभु ये तेरा उपस्थिति है, जो टैलेंट मुझे जहाँ तक लेके नहीं जा सकता उससे भी कहीं दूर तू हम लोग को लेके जाता है प्रभु।
मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ पे हर एक विश्वासी वचन में परमेश्वर मैच्योर हो पाए प्रभु जी, वचन को सीखे, वचन परमेश्वर हर एक क्षेत्र में वचन क्या कहता है वो सीखे प्रभु। विश्वास सिर्फ ये नहीं कि मैं चमत्कार पे विश्वास करता हूँ, हर एक क्षेत्र में हम लोग तेरे ऊपर विश्वास कर, मेरे पैसा में हम लोग आपके ऊपर विश्वास कर पाए, हम लोग का चमत्कार में हम लोग आपके ऊपर विश्वास कर पाए। जब हम लोग के सामने पर्वत आता है, खड़ा हो जाता है, पहाड़ खड़ा हो जाता है, उस पहाड़ के ऊपर हम लोग विश्वास के साथ पहाड़ के अगेंस्ट में हम लोग घोषणा कर पाए प्रभु। हर एक रीजन को प्रभु, हर एक क्षेत्र में तेरा विश्वास में हम लोग बढ़ पाए प्रभु। रालाबा होरी खांतारा लाबा शेरियान तेरे लेबे शवारा वाला लाबा होरी खरा लाबा शेरियान तेरे लेबे होड़ा बारा लाबा खरा तेरे लेबे शरियों तोरो लोबो।